Good evening, friends. Once again, welcome to each one of you in this refresher course on GST, where we are going to discuss various technical topic under GST. Day one, we have discussed ITC reversal requirement with respect to Section 17, Rule 42, 43. And today we are going to discuss e-commerce law and procedure. We know various challenges under e-commerce business are there, and many business activities are going on through e-commerce place. So we are going to discuss in the today's session e-commerce operators various law and procedures by our eminent expert CA Ram Akshay. Sir, welcome to you on this platform. Before starting of the session, I would like to say that we have shared the day one recording as well as presentation. Now, today's speaker, CA Ram Akshay Rautji, about him. He is a commerce graduate and fellow chartered accountant having more than 15 years of experience in the field of indirect tax and other matters. Ramji has started his professional career with the Reliance Industries, Mumbai as a manager, corporate. Thereafter, he has worked with the various two other big four. And thereafter, Ramji led indirect tax COE of Big Four. I am not taking the name. He has worked PwC and EY. Thereafter, Ramji has core specialized in the GST, custom, all India VAT and service tax law. He has worked extensively for Fortune 500 clients. Ramji is a well-known speaker, writer on GST matters, also as a regular contributor to many publications, journal. He has presently authored a book, E-commerce Operator Law, Practice and Procedure. So we have decided to listen him about on this topic. Ramji is extensively involved in the advising multinational and domestic corporate companies across the various sectors: oil and gas, pharmaceutical, agriculture, real estate, infrastructure, housing, FMCG, electronics, and various other sectors. So we are ready to listen him. Sir, welcome to you once again. And now I hand over mic to you for your deliberation. Over to you. Thank you very much, Sir Ji. You have given a superb introduction of my profile about me actually. So that's great, and that's a fantastic way of introducing somebody, some speaker on your platform. Thank you. And you are already my friend, I think. So I think you are aware about it. So Yes. that's a good thing. Thank you. As you said, I have authored a book on this e-commerce. It was very challenging actually, because in the e-commerce sector, there is a kind of revolution, but there is no material available to write anything or to, disseminate information on e-commerce to some newcomers, new learners. That was a big challenge. Even today, if you want to search some material on anywhere on the internet or in from legal perspective, you won't find it. So that was a challenging area, but somehow we could be succeed to write this book. But that's one thing. Now we have to. The topic is very fun, very interesting. If you want to, understand about the e-commerce, you should listen entire whole 2 hours. This 2 hours material, because this material I have gathered from my past experiences. It's not something that is readily available over internet or somewhere else. So this is something which I have gathered while practically working for my e-commerce clients. You know, there are many clients, e-commerce operators for whom I am advisor. I am advising to them,
And that was the knowledge I gathered from there. And then I interpreted that knowledge from legal perspective, from indirect tax perspective. So therefore, my request to everybody is, please, stick with this session and try to understand. If something you are not understanding, then definitely after, completion of this presentation, we'll have a question answer session, and over there we can clear all our doubts and queries. So this is very interesting area. My volume is very low. 1 minute. How it is? Is it audible now? Hello. Yeah, Sumit ji, I would request you. Is it audible now? सर थोड़ा सा वॉइस का इशू है, लिटिल लो है. लो है. 1 minute. ऑडिबल है बट थोड़ा लिटिल लो. आई थिंक पहले बेटर थी. अब बताएं कैसा है? अब बेटर है सर. अब बेटर है. ठीक है. हाँ. वो एक्चुअली मैंने माइक लगा लिया था. कोई बात नहीं. सो मैं ये कह रहा था, विदाउट माइक परफेक्ट है फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड, आप जो 2 आवर्स कह रहे हैं सर, 15 मिनट का टाइम लास्ट में जरूर दीजिएगा फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर ऑडियंस. डेफिनेटली. श्योर सर. मेरे पास जो स्लाइड्स हैं, we'll discuss around 30 slides. Okay. And after that we'll cover all your questions basically, and we'll try to answer all of your queries and doubts. Sure, But my request to you is, please keep patience and wait for the end, because if in between if somebody is asking something, then there will be sir, in between I will allow only chat box, and Yes, in sir. last we will allow to unmute yourself. Okay. So to start with, I am going to share my screen with you all. Please allow me to share my screen. Yes, it is allowed, sir. Is allowed. Is it visible? Yes, perfect. Is it visible on full screen? नहीं सर, फुल स्क्रीन पर नहीं है सर. फुल स्क्रीन वाला शेयर नहीं हो रहा है. 1 minute सर. हाँ, एक बार रिमूव करके दोबारा करें, वो हो जाए. हाँ, वही. अभी फुल स्क्रीन वाला आ गया सर? Yes, 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 perfect. Yeah, thanks. So आज sir, today we are going to discuss the e-commerce law and procedure. So law is one part and procedure is one part. But before that, my understanding is we have to understand what is e-commerce. So what is e-commerce, ये समझना ज्यादा जरूरी है. जब तक हम ये ना समझें, मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी. हमारे जो भी टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी समझने में परेशानी आएगी. So therefore, हमें first of all we have to understand what is e-commerce. So to start with, I will start with definition of e-commerce. Sir, e-commerce को define किया है different institutions ने, even government ने define किया है, even in many acts. For example, CGST Act में भी ये define किया गया है e-commerce. So e-commerce, in short we say e-commerce, but यदि पूरा हम कहें तो इसको full nomenclature is electronic commerce. So electronic commerce क्या है, इसका definition समझना is very important. पहले ये समझ लेते हैं. So definitions में सर सबसे पहले आते हैं, तो definitions में एक WTO ने एक definition दिया है जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा wide है. तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, ये काम कैसे करता है, इसके मॉडल्स क्या हैं,
इसके टाइप्स क्या हैं वो समझेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जीएसटी या इनकम टैक्स वो कैसे अप्लाई होता है इस ट्रांजेक्शन्स पे, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स पे। तो टू स्टार्ट विद, डब्ल्यूटीओ ने जो ई कॉमर्स का डेफिनेशन दिया सर, वो उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल या डिलीवरी गुड्स या सर्विस का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी इलेक्ट्रॉनिक साधनों से करते हैं या इंटरनेट के, इन शॉर्ट वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंटरनेट, सो इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के साधनों से के थ्रू करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। जैसे आप देखेंगे ई कॉमर्स नाम में ही स्टार्टिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी वो बिजनेस, वो सेल, परचेज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग जो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। सिमिलरली आप देखेंगे तो हमारे डीपीआईआईटी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो एफडीआई पॉलिसी भी लेके आती है, उनका कहना है कि ई कॉमर्स जो है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक नया वर्ड भी है, दैट इज डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब ये डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है, ये भी हम नेक्स्ट पैरा में हम चेक करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स कि इन्होंने भी यही कहा, डीपीआईआईटी ने भी यही कहा कि ई कॉमर्स इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, मीन्स थ्रू इंटरनेट। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपना एक अलग डेफिनेशन दिया, हालांकि ये डेफिनेशन भी सेम है, थोड़ा सा ये अलग है। इन्होंने कहा इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल, जो कि इंडिविजुअल या फॉर्म या किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे बिजनेस करने की अनुमति देता है या बिजनेस करते हैं लोग। सो ये सारी चीजें हम कहें तो ये लगभग डेफिनेशन जो दिया डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में दिया हो, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हो, या सीजीएसटी एक्ट ने दिया हो, इन सबका डेफिनेशन लगभग सेम है। अब मैं आपके फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी सीजीएसटी एक्ट में जो डिफाइन किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। सीजीएसटी एक्ट में भी इन्होंने कहा कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फिर इन्होंने एक और वर्ड ऐड किया इसमें, इन्होंने कहा कि इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, यानी गुड्स हो या सर्विस हो या डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, इन सबका यदि सप्लाई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू किया जाता है, इट मींस दीज आर ई कॉमर्स, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये एक क्लियर है। यदि हम चारों डेफिनेशंस को देखें जो एक खुद एक्ट ने डिफाइन किया और दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने डिफाइन किया और एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है, सो इन सब का यदि रिलेशन निकालें तो सब में एक ही बात कॉमन आती है कि जो भी आप बिजनेस करते हैं, बाइंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाटएवर, लॉजिस्टिक्स, प्रोविजन, एवरीथिंग over digital or electronic networks, then it is called e-commerce. अब नेक्स्ट में चलते हैं। इंट्रोडक्शन में यदि हम देखें, आप, मुझे लगता है डेफिनेशन तो अब क्लियर हो गया। अब आते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये ई कॉमर्स, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स इज जस्ट बिकॉज हमारी इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक, सर आप बिलीव नहीं करेंगे, एक अनुमान के मुताबिक अभी करेंटली 2017-18 में एक रिपोर्ट जो आया था उसमें 0.76% कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मार्केट का, यानी ई कॉमर्स का, जीडीपी में, इंडियन जीडीपी में। लेकिन बाय 2030 इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 2.5% ऑफ जीडीपी। आप देखिए कितना सब्सटैंशियल ग्रोथ एक्सपेक्ट किया गया है यहाँ पे। सो ये सब्सटैंशियल ग्रोथ तभी आ सकता है जब देयर इज सम काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोग्रेस। यदि वो प्रोग्रेस ना हो तो इतना शार्प जंप इसके जीडीपी में नहीं हो सकता। आपको एक और बात बता दूं, कोविड ने और ही बहुत ही ज्यादा फेवर में काम किया है ई कॉमर्स के डेवलपमेंट। मार्च 2020 में जब कोविड लॉकडाउन इंडिया में अनाउंस हुआ था, या वर्ल्ड में जब कोविड स्प्रेड हुआ, उस टाइम ये अनुमान लगाया गया कि 25% ई कॉमर्स में ग्रोथ आया था। आप देखिए
जब कुछ भी नहीं हो रहा था तो ई कॉमर्स ने सपोर्ट किया पूरी इकोनॉमी को, और अकेले मार्च में 25% सेल्स बढ़ा ई कॉमर्स के थ्रू। अब बाकी जो डेटा है आप समझ सकते हैं। अब ई कॉमर्स जो ग्रोथ हो रहा है, इसका एक मेन रीजन है इंटरनेट कनेक्शंस या इंटरनेट नेटवर्क। इंटरनेट आप देखेंगे इंडिया में लगभग शहरों में 61% कनेक्शन जो है वो शहरों में है, अर्बन एरियाज में है, और बाकी रिमेनिंग ऑलमोस्ट 39-40% कनेक्शन जो है रूरल एरिया में है। अब रूरल एरिया में भी पेनेट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है इंटरनेट का, जिसकी वजह से रूरल एरिया में मोबाइल कनेक्शन बढ़ रहे हैं, वहां पेनेट्रेशन इंटरनेट यूज बढ़ रहा है। कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि डेटा यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा इंडिया में हो रहा है आज के टाइम में। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेटा यूटिलाइजेशन कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। वो डेटा यूटिलाइजेशन इज व्हाट? दैट इज अ काइंड ऑफ ई कॉमर्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को हम यूज कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू। तो इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। सो इसकी वजह से हम देखें, अब इसमें भी और बात है कि यदि कनेक्शंस की बात की जाए तो 97% कनेक्शंस वायरलेस हैं, यानी मोबाइल है, मोबाइल लोग यूज कर रहे हैं। आप गांव में जाके देखें तो मोबाइल का यूज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का स्कोप भी बढ़ रहा है, बहुत ही वाइड हो रहा है। और यही एक डिजिटल इंडिया जो रिवोल्यूशन है उसको यही सपोर्ट करने वाला है। जितना पेनेट्रेशन होगा हमारे इंटरनेट का रूरल एरियाज में, सिटीज में तो है ही, अर्बन एरियाज में है ही, उतना ही हमारे ई कॉमर्स का ग्रोथ होगा। अब ये जो रोबस्ट ग्रोथ आ रहा है, ये रोबस्ट ग्रोथ क्यों आ रहा है? ये रोबस्ट ग्रोथ इसलिए आ रहा है सर कि आज आप देखें, चाहे ग्रोसरी हो या ई रिटेल हो या सर्विस हो, हर सेक्टर में मतलब देयर आर मेनी फोल्ड प्रोग्रेस। सीएजीआर देखें तो ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट में 57% के रेट से बढ़ रहा है सर, ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट। आप देखिए इसका सीएजीआर 57% है। सिमिलरली ई रिटेल मार्केट जो है, इसका ग्रोथ जो है वो सीएजीआर 30% से भी ज्यादा है। अब इसमें जो और बूस्टर का काम किया गवर्नमेंट की डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट ने जो लिया, इसकी वजह से और ज्यादा ई कॉमर्स ग्रो हो रहा है। जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इनोवेशन फंड, ये सारे सेटअप किए सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, जिसमें पूरी प्रोक्योरमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जेम के थ्रू हो रही है। इसके अलावा कई मार्केट प्लेसेस बनाए गए हैं, इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी अलग से मार्केट प्लेस बनाया गया, यानी वेबसाइट बनाया गया। इट इज हैपनिंग ऑनलाइन नाउ। सो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है। केवल प्राइवेट सेक्टर ही इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और इसे प्रमोट कर रही है। आज लगभग गवर्नमेंट की हर सर्विस आपको मोबाइल में अवेलेबल है, आप मोबाइल से हर सर्विस अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट। एक और रिपोर्ट कुछ ही दिनों पहले पब्लिश हुई थी इकोनॉमिक टाइम्स में कि टीसीएस के सीईओ ने कहा था कि इंडिया की जो ग्रोथ है दैट विल बी प्लेटफॉर्म ड्रिवन। प्लेटफॉर्म ड्रिवन मीन्स ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू ही इंडिया की मेन ग्रोथ होने वाली है। अब जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है ई कॉमर्स का, सो इन्होंने खुद पहले ही रिसर्च कर लिया और पहले ये बता दिया, और ये लीडिंग न्यूज़पेपर में छपा भी था। रीजन क्या है ये ग्रोथ होने का, ई कॉमर्स के ग्रो होने का? देयर आर मेनी रीजंस, जैसे कि ग्लोबल ऑपरेशन है, कहीं से कहीं ऑर्डर कर लो माल आपको मिल जाएगा, बिजनेस कर सकते हैं, 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। ये देयर आर इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स, आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है आप पता लगा सकते हैं, यानी देयर आर लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल इन केस ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। अब जैसे मैंने बताया था कि ई कॉमर्स का, जैसे हमने डेफिनेशन समझा, इंट्रोडक्शन समझा, व्हाई इट इज प्रोग्रेसिंग, अब इसके कुछ मॉडल्स हमें समझने होंगे, क्योंकि मॉडल समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? मॉडल्स एंड टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ये नहीं समझेंगे तो हम टैक्सेशन इम्पैक्ट इसका नहीं समझ पाएंगे। देयरफॉर इनके जो मॉडल्स हैं, इनके जो टाइप्स हैं, वो हमें समझना जरूरी है। और बिजनेस टाइप्स जो हैं ट्रेडिशनल, इसमें नॉर्मली आपको पता है कि B2B, B2C ये सारे टाइप्स हैं। ई कॉमर्स में भी ये टाइप्स हैं। ई कॉमर्स में भी B2B ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, C2C है,
कंज्यूमर टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर है, गवर्नमेंट टू बिजनेस है, फिर कंज्यूमर टू बिजनेस है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, बिजनेस टू गवर्नमेंट है, बिजनेस टू बिजनेस है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस. तो ये ट्रांजेक्शंस के डिफरेंट टाइप्स हैं. ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनली जो होता है फिजिकली जो बिजनेस होता है ट्रेडिशनल फॉर्म में उसी में सारे टाइप्स हैं, ये ई कॉमर्स में भी टाइप्स हैं. तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी. अब थोड़ा मैं यहाँ से फास्ट होऊंगा. अब सिमिलरली यदि मॉडल्स देखें तो ई कॉमर्स के जो मॉडल्स हैं वो ये हैं. मॉडल्स मीन्स वो कौन कौन से कैटेगरीज हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप से ट्रांजेक्शन्स मूव होते हैं. आप बेहतर समझते हैं इन सब चीजों को, वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आजकल आपने देखा होगा, इधर उधर पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन न्यूज में कि मार्केट प्लेस मॉडल है. वहां पे डेफिनेटली मार्केट प्लेस मॉडल भी है. फुलफिलमेंट सेंटर मॉडल है, डेफिनेटली है. फिर इन्वेंट्री मॉडल है, आपने ये भी सुना होगा कई न्यूज़पेपर्स में. सर्विस एग्रीगेटर्स मॉडल है, ये भी सुना होगा आपने. So these are models through which e-commerce transactions are happening currently in India or even whole world. तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं. अब हमें ये देखना है कि हर मॉडल में डिफरेंट टाइप की टैक्सेबिलिटी बनती है अंडर जीएसटी लॉ. इनकम टैक्स एक्ट का भी हम डिस्कस करेंगे अलग से, बट अंडर जीएसटी लॉ ये मॉडल वाइज टैक्सेबिलिटी बनती है. अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको ये मॉडल्स में क्या होता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है. सबसे पहले मार्केट प्लेस मॉडल. अब मार्केट प्लेस मॉडल में ही मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज मार्केट प्लेस. अब मार्केट प्लेस क्या है ये समझने के बाद मैं बताऊंगा कि व्हाट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर. ई कॉमर्स क्या है ये तो आप समझ गए. अब मार्केट प्लेस क्या है ये नया टर्म है, ये समझना पड़ेगा. ई कॉमर्स ऑपरेटर्स क्या है ये समझना पड़ेगा. तो सबसे पहले मार्केट प्लेस मॉडल समझते हैं. मार्केट प्लेस मॉडल का मतलब होता है कि देयर आर ऑनलाइन मार्केट यानी मार्केट प्लेसेस. जैसे हमारा फिजिकल मार्केट प्लेस होता है, जैसे करोल बाग मार्केट है, वैसे ही ये फिजिकल ना होके डिजिटल वर्ल्ड में देयर आर डिजिटल मार्केट्स. अब जैसे अमेजन है, उन्होंने अपना अलग मार्केट प्लेस बनाया. सो वो जो मार्केट पहले फिजिकल होता था, जैसे करोल बाग की मार्केट है या कोई और मार्केट है, वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल मार्केट सेटअप किया इन्होंने, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स आते हैं और वो खरीद बिक्री करते हैं. दे डू ट्रांजेक्शंस. कोई गुड्स बेचता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है ऑन दिस ऑनलाइन मार्केट प्लेस. सो ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस का मतलब है कि जो फिजिकल मार्केट्स पहले होती थी वो अब ऑनलाइन हो गई हैं, वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई. सो अब ये डिजिटल मार्केट ऑनलाइन मार्केट प्लेस का है या डिजिटल मार्केट प्लेस का है, ये मार्केट प्लेस है जहां पे बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं और दोनों खरीद बिक्री करते हैं. जिसको जो खरीदना है, जिसको जो बेचना है वो करते हैं. लेकिन ये मार्केट प्लेस का कोई तो ऑनर होगा सर. जैसे फिजिकल मार्केट भी होता है तो वहां पे उस मार्केट का कोई ना कोई ऑनर होता है. यहाँ पे डिजिटल मार्केट सिंस क्रिएट किया गया है तो यहाँ भी कोई ना कोई ऑनर है. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब का कोई ना कोई ऑनर है, कोई ना कोई कंपनी है जो जिन्होंने इसे डेवलप किया, जो इसके ऑनर हैं, जो इसे होल्ड करते हैं, जो इसके बेनिफिशियरी हैं. सो ये जो ऑनर हैं, इन ऑनर्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कहा जाता है. या तो जो ओन करते हैं या जो मैनेज करते हैं, यही इन्हीं लोगों को ई कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाता है. सो मुझे लगता है आज से आपको ये टर्म क्लियर हो गया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कौन है एंड मार्केट प्लेस किसको कहते हैं. मार्केट प्लेस मॉडल में या मार्केट प्लेस मीन्स सिंपली इंस्टीड ऑफ फिजिकल मार्केट्स दीज आर digital markets where buyer and sellers comes and they do transactions of buying or selling, and these marketplaces are managed owned by somebody else. जो उसके ऑनर है वो इसके लिए कमीशन चार्ज करते हैं, थोड़ी बहुत फी चार्ज करते हैं. वो जो मार्केट प्लेस है वो किससे फी चार्ज करते हैं, जो ऑनर्स हैं वो सेलर्स से चार्ज करते हैं, कभी कभी बायर्स से करते हैं, लेकिन आजकल बायर्स कोई देता नहीं है कोई कमीशन. सो ये प्रैक्टिस नहीं है, सेलर्स ही पे करते हैं जो फी कमीशन है, सर्विस फी पे करते हैं इन मार्केट प्लेस ऑनर्स को, डिजिटल मार्केट प्लेस ऑनर्स को. अब ये मुझे लगता है आप समझ गए. सो इस मार्केट प्लेस मॉडल में
बेसिकली देयर आर अ डिजिटल मार्केट प्लेस, और वहां पे बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं. सो बेसिकली मार्केट प्लेस मॉडल में देयर आर 3 पार्टीज. कौन? एक जो ऑनर ऑफ मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, या मार्केट प्लेस का है या मार्केट प्लेटफॉर्म का है, तो एक ऑनर हो गया. दूसरा हो गया सेलर्स, जो वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं उस मार्केट प्लेस पे. तीसरे हो गए बायर्स, परचेजर्स, जो वहां पे जाते हैं, गुड्स या सर्विसेज ऑर्डर करते हैं, खरीदते हैं. तो ये देयर आर 3 पार्टीज इन मार्केट प्लेस मॉडल्स. अब ये समझ गए, खरीद बिक्री तो आप समझ गए होंगे. वहां पे जो सेलर्स हैं वो अपने गुड्स या सर्विसेज को डिस्प्ले करते हैं आफ्टर टेकिंग रजिस्ट्रेशन अप्रूवल ऑफ ऑनर्स, मार्केट प्लेस ऑनर्स या ई कॉमर्स ऑपरेटर्स. सिमिलरली बायर्स वहां रजिस्ट्रेशन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और फिर वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं. और इस तरह से वो फिर ऑर्डर फिजिकली, जो गुड्स है तो फिजिकली मूव होता है थ्रू लॉजिस्टिक्स. और यदि सर्विसेज है तो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती है, तो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड होती है, या बाई अदर देन ऑनलाइन मोड प्रोवाइड हो सकती है, तो वो होती है. अब आते हैं फुलफिलमेंट सेंटर मॉडल. ये जो फुलफिलमेंट सेंटर मॉडल है, इस मॉडल में बेसिकली होता ये है कि जो मार्केट प्लेस ऑनर है यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वही एक अपना गोडाउन, वेयर हाउस बनाता है. और उस वेयर हाउस में ये जो मार्केट प्लेस के जो सेलर्स हैं, वो सेलर्स अपना गुड्स या गुड्स स्टोर करते हैं वहां पे. सो बेसिकली फुलफिलमेंट सेंटर मॉडल में ये गुड्स के लिए एप्लीकेबल होता है, सर्विसेज के लिए नहीं होता है. तो वहां वो स्टोर करते हैं, और वहां से वो उसके लिए कुछ सर्विस भी पे करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर को, मार्केट प्लेस ऑनर्स को. वहां से फिर जो लोडिंग अनलोडिंग पूरा होल लॉजिस्टिक्स वो मैनेज करते हैं, या तो थर्ड पार्टी मैनेज करती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर मैनेज करता है, और वो सर्विसेज गुड्स बेसिकली सप्लाई होता है. दिस इज इन फुलफिलमेंट मॉडल. इसको आप ट्रेडिशनल वेयर हाउस एक समझ सकते हैं, बट दिस इज अ काइंड ऑफ डिजिटल वेयर हाउस, जो कि डिजिटली मैनेज्ड है, एंड इट इज रिलेटेड, इंटीग्रेटेड विद मार्केट प्लेस, डिजिटल मार्केट प्लेस. सिमिलरली हाइब्रिड मॉडल जो है, ये दोनों का मिक्स होता है. यानी हाइब्रिड मॉडल में जो मार्केट प्लेसेस होते हैं, वहां पे सेलर रजिस्टर्ड होते हैं, सेलर का अपना वेयर हाउस भी होता है. इसके अलावा फुलफिलमेंट सेंटर भी होता है, जहाँ पे कुछ सेलर चाहें तो अपना वहां स्टोर कर लेते हैं, और वहां से वो सर्विसेज, होल लॉजिस्टिक इज प्रोवाइडेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स. तो ये इस तरीके से होता है. एजेंसी मॉडल ये थोड़ा सा अलग है. एजेंसी में मॉडल में होता ये है कि जो मार्केट प्लेस ऑनर है या ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है. यानी यहाँ पे जो मार्केट प्लेस मॉडल है, वो यदि ऑर्डर कोई किसी कस्टमर ने प्लेस किया, तो उसको पूरा एग्जीक्यूशन ये सेलर्स के बिहाफ पे करते हैं, चाहे कैश कलेक्शन हो या मनी कलेक्शन, कंसिडरेशन कलेक्शन, सब चीज वो उनके बिहाफ पे करते हैं. यानी यहाँ पे जो बेसिक नेचर है दोनों के रिलेशन का, सेलर्स और मार्केट प्लेस ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के बीच, वो एजेंट का होता है. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एजेंसी मॉडल. इसका भी इम्पैक्ट देखेंगे कि जीएसटी में कैसे इसके लिए प्रोविजन. इन्वेंट्री मॉडल इज नथिंग, इट्स फॉर गुड्स. जो मैंने फुलफिलमेंट सेंटर बताया, उसी का ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट है. सपोज मैं सेलर हूँ, मैं मार्केट प्लेस पर रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना वेयर हाउस रखता हूँ, मैं अपना, लेकिन मेरे पास ऑनलाइन अपना वेबसाइट नहीं है, तो मैं मार्केट प्लेस पर रजिस्टर्ड हूँ, और मैं वहीं पे ऑर्डर आता है, मैं वहीं से ऑर्डर लेकर के उसकी डिलीवरी करता हूँ. सो इट इज फॉर गुड्स, सप्लायर ऑफ गुड्स ऑनली. ये इन्वेंट्री मॉडल में होता है. सर्विस एग्रीगेटर्स मॉडल, जैसे मैंने इन्वेंट्री मॉडल बताया ओनली फॉर सप्लायर्स ऑफ गुड्स, यानी इन केस ऑफ गुड्स इट इज एप्लीकेबल, बट सर्विस एग्रीगेटर्स मॉडल में इट इज नॉट फॉर द गुड्स, इट इज नॉट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स, इट इज फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज. यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जो सप्लायर्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. But service aggregators model is something which is different from any other models. Service aggregators का बेस्ट एग्जांपल आप देखें तो ओला हो गया, उबर हो गया, मैक्सी कैब हो गया, टैक्सी वगैरह जो चलती है, एयरपोर्ट टैक्सी, वो सारी हो गई. यहाँ पे क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर, जैसे ओला का एग्जांपल लिया, उबर का एग्जांपल, ये इनका अपना एक मार्केट प्लेस, डिजिटल मार्केट प्लेस होता है, मार्केट प्लेटफॉर्म होता है. वहां पे डिफरेंट जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, और वो उसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं. So it is exclusively for the supply of services. Best example is Ola, Uber, या यहाँ भी इवन अदर भी सर्विस है, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया. इस टाइप के जो प्रोवाइडर्स हैं, दे आर सर्विस एग्रीगेटर्स मॉडल्स में आते हैं.
सर्विस टैक्स में हालांकि इसे डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया था, बट यहाँ पे आप एक जनरल मीनिंग में लेके चलें तो यही है। अब टैक्स इम्पैक्ट इनका हम अलग देखें। चलिए, मुझे लगता है आपने अभी तक जो समझा वो ये समझा कि व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, how e-commerce is developing, what is the scope of e-commerce in future, and what are the models of e-commerce, ये हम समझ गए। यानी ई कॉमर्स के बारे में मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए। अब इसकी टैक्स एप्लीकेबिलिटी पे आते हैं। कमिंग टू टैक्स एप्लीकेबिलिटी, हम ये स्टार्ट करते हैं जीएसटी ऑन ई कॉमर्स। सर देखिए, जैसे आपने सुना है कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हो, सो तब से इसका इवोल्यूशन फेज चल रहा है। ई कॉमर्स में भी इन्होंने जो काफी चीजें डेवलप करी हैं और काफी सेक्शंस इंसर्ट किया है, काफी डेफिनेशंस भी दिए हैं, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आते ही रहता है। देयरफॉर वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट ई कॉमर्स आप समझ गए तो मुझे लगता है अब जीएसटी का इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स समझने में आपको परेशानी नहीं है। चलिए एक एक करके समझते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है ये आप समझ गए। ई कॉमर्स ऑपरेटर हु ओन्स और मैनेजेस मार्केट प्लेस, ठीक है, जो भी मार्केट प्लेस को ओन करता है, जो ओनर है या जिसने डेवलप किया, मैनेज करता है, ही इज ई कॉमर्स। हमने पहले वाली स्लाइड्स में भी डिस्कस किया। तो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो कोई भी हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, वो अलग बिजनेस भी करती है, साथ में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है उसने, तो ये हो सकता है। यानी एक जो कंपनी है उसके कई बिजनेसेस हो सकते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर भी वो हो सकती है और रेगुलर सप्लायर भी हो सकता है, फ्रॉम जीएसटी परस्पेक्टिव हम यदि कहें। अब यदि रेगुलर सप्लायर है अंडर जीएसटी, तो रेगुलर जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे उस पर। ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए अलग से प्रोविजन है, वो यहाँ अप्लाई होगा। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है जीएसटी में अंडर सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। यानी आपने ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करी, प्लेटफॉर्म डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद वहां पे सेलर्स भी आ रहे हैं, बायर्स भी आ रहे हैं, सारा काम शुरू कर दिया, आपका रेवेन्यू इवन लेस देन 20,000 है, इवन रेवेन्यू इज लेसर देन 25,000 फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, तो भी आपको कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है फ्रॉम द डे वन। ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम द डे वन से आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा और आपको सारे कंप्लायंसेस जीएसटी एक्ट में करने। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये कहती हैं कि फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई। सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन वहां लेना है इन दैट स्टेट फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना, क्योंकि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो तो डिजिटल है, वो तो डिजिटल वर्ल्ड में है, लेकिन वो किस स्टेट से ऑपरेट हो रहा है, वहां के सब्सटेंशियल रिसोर्सेज, प्लेस ऑफ बिजनेसेस क्या है, ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा और उस स्टेट में इसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सो देयर आर टू थिंग्स, एक यू हैव टू टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, सेकंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इन विच स्टेट, दिस हैज टू बी डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कंप्लायंसेस क्या है वो देखते हैं। आपने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके बाद सारे कंप्लायंसेस जो जीएसटी के हैं, जो एप्लीकेबल हैं, वो तो करने ही हैं, लेकिन आपके लिए यानी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स देयर आर सम स्पेसिफिक कंप्लायंसेस अंडर जीएसटी लॉ। वो स्पेसिफिक कंप्लायंस जो है वो अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कहा गया है।
पहला स्पेसिफिक कंप्लायंस ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए क्या कहा गया, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। हाँ, एक और बात बता दूं, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, साथ में उस पे जो सेलर रजिस्टर्ड है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उन सेलर्स को भी लेना है, वो भी लेंगे, ऑपरेटर तो लेगा ही। अब जो आपके लिए 52 ऑफ सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी से कि आपको टीसीएस कलेक्ट करना है फ्रॉम सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म पे सेलर्स रजिस्टर्ड है उनसे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, हर महीने कलेक्ट करना है, और वो आपको डिपॉजिट कराना है गवर्नमेंट को। अब आप कहेंगे कि भाई टीसीएस कैसे आ गया इसमें, सप्लाई कैसे, सप्लाई तो नहीं हो रही है। सर सप्लाई तो आप कर ही रहे हैं सर्विस, उसका तो अलग प्रोविजन है, ये आपके लिए स्पेशल प्रोविजन है अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अंडर दिस सेक्शन आपको कंपल्सरी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ऑल द सप्लायर्स हु आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। अब क्वेश्चन आता है, जो टीसीएस कलेक्ट करेगा वो किस रेट से करेगा, 1%। यदि इंटरेस्टेड सप्लाई है तो, यदि इंटरेस्टेड सप्लाई है तो 0.5% सीजीएसटी लगाएंगे और 0.5% एसजीएसटी लगाएंगे, ये आपको देखना है। अब ये जो टीसीएस का प्रोविजन है, इट इज ओनली ऑन टैक्सेबल सप्लाईज, और ध्यान रहे यदि एग्जेम्प्ट सप्लाईज कोई कर रहा है, कोई सप्लाई रजिस्टर्ड है तो अंडर द लॉ उसको रजिस्ट्रेशन तो जीएसटी में लेना पड़ेगा, लेकिन वो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है सेक्शन 52, उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा और टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो ऑन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ओनली टीसीएस कलेक्ट करना है एट द रेट ऑफ 1% ऑफ आईजीएसटी और 0.5% ऑफ सीजीएसटी एंड 0.5% ऑफ एसजीएसटी। अब बात आती है सर कि नेट वैल्यू क्या होती है ऑफ टैक्सेबल। पहला बात कि टैक्सेबल सप्लाईज पे ही केवल टीसीएस कलेक्ट होगा। दूसरी बात नेट वैल्यू, नेट वैल्यू मीन्स सपोज किसी सप्लायर ने 1 लाख का माल बेचा महीने में, लेकिन 1 लाख में से 10,000 रुपए रिटर्न भी आ गया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख का बेचा, 10,000 का रिटर्न भी आ गया, सेल्स रिटर्न आ गया, तो जो टीसीएस कलेक्ट होगा वो 1 लाख पे कलेक्ट नहीं होगा, टीसीएस जो कलेक्ट होगा वो 90,000 पे कलेक्ट होगा, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। मुझे लगता है ये एग्जांपल से क्लियर हो गया। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं टैक्सेबल सप्लाईज, तो पूरे मंथ का जो सप्लाई है उसको एग्रीगेट इकट्ठा कर लिया जाता है और उस पर ये कैलकुलेट होता है। बाकी चीजें जो रेट में है नोटिफाइड एंड सेक्शन 95 ये मैं अलग से बताऊंगा, बट इतना याद रखें कि जो भी आप नेट सप्लाई करते हैं आफ्टर एडजस्टिंग सेल्स रिटर्न, आफ्टर एडजस्टिंग सेल्स रिटर्न, वो सारी चीजें उन पे ही टीसीएस कलेक्ट करना है। अब रिटर्न्स, सर रिटर्न्स जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करना होता है वो मंथली फाइल करना होता है जीएसटीआर एक्ट, और मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है, विद इन 10 डेज। ध्यान रखें जो जीएसटीआर एक्ट फाइल करना है फ्लिपकार्ट को या अमेजन को, उसको मंथली फाइल करना है एंड दैट विद इन 10 डेज, यानी 10th को ड्यू हो जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस मंथ, वो फाइल करना है। साथ में एनुअल रिटर्न भी फाइल करना है, दैट इज जीएसटीआर 9B। जैसे हम जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं वैसे ही एनुअल रिटर्न इनको भी फाइल करना होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को। ध्यान रखिएगा ये चीजें केवल इन रिलेशन टू ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है, जो इसके लिए रजिस्ट्रेशन लिया है ये उनके लिए कंप्लायंसेज है। यदि इस एक कंपनी दोनों में रेगुलर कंप्लायंस भी, रेगुलर सप्लायर भी है और साथ में ई कॉमर्स ऑपरेटर भी है, तो दोनों कंप्लायंसेज उनको करने पड़ेंगे, ये भी क्लियर होगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट में कि जो जीएसटीआर 8 फाइल होता है, यानी जीएसटीआर 8 फाइल किस लिए होगा, जो आपने टीसीएस डिडक्ट किया है उसकी डिटेल आप सबमिट करते हैं, पे करते हैं, और वो उसका जो बेनिफिट है, जो सप्लायर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, जो सप्लायर्स हैं उनको इनका बेनिफिट मिलता है। जैसे कि कोई भी हम जीएसटीआर 1 सप्लायर भरता है तो जीएसटीआर 2 में उसकी एंट्री आ जाती है। सिमिलरली यहाँ भी है, जीएसटीआर 8 यदि फाइल करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर तो उसकी एंट्री जीएसटीआर 2 के पार्ट डी में आ जाती है, यानी दैट इज अ काइंड ऑफ टैक्स डिपॉजिट, और उसका बेनिफिट ले सकता है कोई भी सप्लायर। ऐसा नहीं है कि दिस इज अ कॉस्ट टू द सप्लायर्स, क्योंकि ये टीसीएस है, टीडीएस और टीसीएस आप अच्छी तरह समझते हैं।
यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए सेक्शन 52 ने केवल रिक्वायरमेंट रखी टीसीएस की, मतलब टीसीएस कलेक्ट करना है सप्लायर से और जमा करवाना है कि ताकि को कंट्रोल हो सके कि कितने सप्लायर्स आ रहे हैं, कौन बेच रहा है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लायंस। ये नहीं है कि दिस इज अल्टीमेटली सप्लायर हैज टू बियर दिस, ऐसा नहीं है। सप्लायर को बियर तभी करना है जब उसकी एप्लीकेबिलिटी पूरी बनेगी, उसका सप्लायर्स को इसका बेनिफिट मिल जाता है। अब जो लाइबिलिटी है टीसीएस कलेक्ट करने की, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि वो किसकी है, हर ई कॉमर्स ऑपरेटर की है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर की ये जो लाइबिलिटी है टीसीएस कलेक्ट करने की, ध्यान दे दीजिएगा, ये तब नहीं है जब वो एज एन एजेंट वर्क करता है। देखिए प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था मॉडल्स में कि एजेंसी मॉडल, यदि एजेंसी मॉडल में वो काम हो रहा है तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टीसीएस कलेक्ट करने की। मुझे लगता है आप समझ गए हैं, मैंने क्यों मॉडल्स डिस्कस किया था। सो वहां पे टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर को कलेक्ट करने की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। अब मैं आपको एक समरी भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये कलेक्ट करने की जिम्मेवारी दी गई है, वो अलग से बताऊंगा। साथ में जो ये जो ई कॉमर्स जो ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करेंगे, ये कब करेंगे सर? सो ये टीसीएस कलेक्ट तब होगा जब फाइनल, जैसे पूरे मंथ का ट्रांजेक्शन इकट्ठा होता है, फाइनल जब सेटलमेंट होता है उसी टाइम ये जो पेमेंट उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को सप्लायर्स को करनी होती है उसी से ये कलेक्ट करके जमा करा दे। अब ये प्रोविजन आया कब से टीसीएस का? तो ये आया सर 1 अक्टूबर 2018 से। अब नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं स्लाइड पे, ये आपके रेफरेंस के लिए है। अब सबसे बेस्ट पार्ट इज कि अभी तक हमने समझा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस डिडक्ट करना होता है और कब नहीं करना होता, ये हमने बताया कि एजेंसी मॉडल में नहीं करना होता। अब एग्जाम्पशंस भी है कि टीसीएस उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर को कलेक्ट नहीं करना। वो कब है कि जब ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई ही ना हुआ हो तो वहां पे टीसीएस कलेक्ट होगा ही नहीं। कैसे होगा? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही जो मार्केट प्लेस है, ई मार्केट प्लेस है, उसके थ्रू सप्लाई होना चाहिए, तभी जाके ये टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई होता है। यदि किसी सेलर सप्लायर ने वो ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट पे भी रजिस्टर्ड है, अमेजन पे भी रजिस्टर्ड है और वो अपना अलग से ऑफलाइन सप्लाई भी कर रहा है, तो इस केस में जो टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई करेगा अमेजन, वो करेगा जो उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू सेलर ने सप्लाई किया उस पे करेगा, उसके अलावा कहीं नहीं करेगा, किसी अदर ट्रांजेक्शन पे नहीं करेगा। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया कि यदि आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई या नील रेटेड सप्लाई कर रहे हैं या नॉन जीएसटी सप्लाई, बेसिकली एग्जेम्प्टेड सप्लाई के डेफिनेशन में नॉन जीएसटी सप्लाई भी इंक्लूडेड, आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उस केसेस में भी टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि साफ कहा गया है कि इन द केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। थर्ड, सेक्शन 9(5) में कुछ सर्विसेज स्पेसिफाइड है जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया था। उसके अनुसार सेक्शन 9(5) में कुछ सर्विसेज स्पेसिफाइड है जिनके केस में टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सेक्शन 9(5) में ये सर्विसेज जो स्पेसिफाइड है, इन सर्विसेज के केस में ऐसा माना जाता है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इवन दो वो सर्विसेज उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई हो रही है, एक्चुअल सप्लायर कोई और है, लेकिन इवन दो एक्चुअल सप्लायर इज समबडी एल्स बट ही इज प्रोवाइडिंग ई कॉमर्स सर्विस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सर्विस, यानी ही इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। सो इस केस में इट विल बी डिम्ड for the purpose of application of GST law that he is the supplier of that those services। वो सर्विसेज क्या है? जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, लॉजिंग सर्विसेज हैं, मतलब होटल्स वगैरह जो बुक करते हैं, ये सारी सर्विसेज हैं, प्लम्बर वगैरह की सर्विसेज हैं। ये सारी सर्विसेज ऐसी स्पेसिफाई की गई है, मैं आगे वाली स्लाइड में आपको स्पेशली नोमेनक्लेचर दिखाऊंगा, डिस्कस करूंगा, जिसमें कि जो सप्लायर है ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ एक्चुअल सप्लायर और ही हैज टू डू कंप्लायंस, यानी वहां पे टैक्स इनवॉइस जो इश्यू करेगा वो टैक्स इनवॉइस अमेजन करेगा यदि उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, मेक माई ट्रिप के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई होटल बुकिंग हुई है,
तो मेक माई ट्रिप जो है वो इनवॉइस इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस, और उसमें जीएसटी लगाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सप्लाई, वेदर इंटरस्टेट और इंटरस्टेट। तो ये सारी सर्विसेज जो है सेक्शन 9(5) में नोटिफाइड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन केसेस में सिंस ई कॉमर्स ऑपरेटर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द एक्चुअल सप्लायर, या ही इज डीम्ड टू बी द डीम्ड एज अ सप्लायर ऑफ सर्विस, ही on those transactions TCS is not applicable, यानी सेक्शन 52 is not applicable। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अब चलते हैं नेक्स्ट पे। शेड्यूल 3 के जो आइटम्स हैं मैंने आपके क्लैरिटी के लिए मेंशन कर दिया है कि जो एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जिसको ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है, उन ट्रांजेक्शन्स पे शेड्यूल 3 में जो मेंशन है उनके केसेस में ये अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है? जैसे पहले प्री जीएसटी रिजीम में ICCL बहुत फेमस था, ये ट्रांजेक्शन, या और भी कोई एग्जांपल आप ले लें, कोई भी ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल 3 का है, सिंस दोज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इवन दो दोज आर रूटेड थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ई मार्केट प्लेस, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 52 इज नॉट एप्लीकेबल। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। 4 पॉइंट यहाँ पे हैं, यानी जो सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होता ही नहीं है, उन वेब से ई मार्केट प्लेस के थ्रू नहीं होता है, उस पर TCS प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई के केस में इवन दोज आर हैपनिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, वहां पे नहीं एप्लीकेबल होगा TCS प्रोविजन। सेक्शन 9(5) जो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं उन पे नहीं होगा, शेड्यूल 3 आइटम्स में नहीं होगा, और जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर इज प्रोवाइडिंग सर्विस एज एन एजेंट ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, वहां भी नहीं। ये 5 केसेस आपने डिस्कस कर लिए। अब आता हूं मैं इसको समराइज करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा डिस्कस किया वो इसमें समराइज्ड है। सपोज आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, ये मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अमेजन का या फ्लिपकार्ट का, वो वहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो रही है और सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो रही है। देखिए अब जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, सप्लाई ऑफ गुड्स में भी दो है। यदि ECO मीन्स ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे मैंने वहां बताया, इफ ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट तो TCS प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। अदर देन एजेंट तो है तो वो एप्लीकेबल यदि वो काम कर रहा है। सिमिलरली आप देखें सर्विसेज के केस में, यदि सर्विसेज नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट, तो उस केस में क्या होगा? TCS प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। अदर केसेज में क्या होगा? TCS का प्रोविजन एप्लीकेबल। सो यहाँ पे एक नटसेल समरी दिया गया। आइए अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें कि सपोज आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं या सप्लायर ऑफ सर्विस है, आपने अपना वेबसाइट भी डेवलप किया है और आप अमेजन या फ्लिपकार्ट या अदर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे भी रजिस्टर्ड है, वहां से भी आप सप्लाई कर रहे हैं। सो अब देखने वाली बात है कि क्या जो आप अपने ऑनलाइन वेबसाइट से सप्लाई कर रहे हैं, क्या वो ई कॉमर्स डेफिनेशन में आता है? क्या आप उसके लिए जो सेक्शन 52 का एप्लीकेबिलिटी है, जो TCS के प्रोविजन से वो एप्लीकेबल होंगे? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। दीज आर नोवेयर डिस्कस्ड, बट अब मैं इसमें बताता हूँ। हमारा जो रिसर्च है वो ये कहता है कि यदि आप अपना वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, अपने वेबसाइट के थ्रू अपना सामान बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो भी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के डेफिनेशन में तो फॉल कर ही जाते हैं, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, वेबसाइट है, ऑनलाइन आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑनलाइन गुड्स सेल कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सो यू आर फॉलोइंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। लेकिन सेक्शन 52 ऑफ CGST एक्ट विल नॉट अप्लाई टू यू। क्यों? क्योंकि वहां पे नियम है कि आपके वेबसाइट एक होना चाहिए, वेबसाइट पे आपके सेलर्स भी आने चाहिए, वेबसाइट का ओनर कोई और होगा, सेलर्स भी आने चाहिए वहां पे, और बायर्स भी आने चाहिए वो मार्केट प्लेस पे। लेकिन यहाँ पे तो आपका एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे कोई सेलर है ही नहीं, आप ही इकलौते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए TCS प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। फिर
जैसा मैंने बताया कस्टमर सप्लायर और ई कॉमर्स ऑपरेटर तीनों होने चाहिए तो सेक्शन 52 अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब क्या है कि कई केसेस में ये होता है कि आपने एक इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाया, जिस पोर्टल पे खाली आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन उसके थ्रू ऑर्डर रूट नहीं हो रहा है, आप उसके थ्रू सप्लाई नहीं कर रहे। तो इस केस में वो पोर्टल जो है, ऑल्दो दैट इज डिजिटल, although that is online, you are providing information to the public, you are providing information to the prospective customers, but in that case you are not supplying through that website. So therefore ये जो है ई कॉमर्स डेफिनेशन में आएगा, लेकिन इस पे भी फिर सेक्शन 52 एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन कुछ लोग यहाँ ये भी कहते हैं कि ये ई कॉमर्स में आएगा ही नहीं, क्योंकि खाली ये इंफॉर्मेशन के लिए है। So therefore it will not come under the purview of e-commerce. लेकिन मेरा मानना है कि यदि वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो भी ये ई कॉमर्स की डेफिनेशन में आएगा, और उसके जो ऑनर है वो ई कॉमर्स के ऑनर ऑपरेटर माने जाएंगे, बट सेक्शन 52 विल नॉट अप्लाई। अब आते हैं सर्विसेज जो सप्लाई होती है थ्रू ई मार्केट प्लेस। सर्विसेज मीन्स हियर वी विल डिस्कस सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो जस्ट हमने अभी डिस्कस किया कि अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट आप यदि उसको प्रॉपर पढ़ेंगे तो यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसी को जीएसटी पे करना है उन स्पेसिफाइड सर्विसेज पे जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। सो गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया है, जैसे मैंने बताया वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पे जो सप्लायर्स हैं, those suppliers stepped into the shoes of the actual suppliers, यानी वो एक्चुअल सप्लायर की तरह डीम्ड किया जाएगा। यानी लॉ ने ही अंडर सेक्शन 95 लॉ ने ही डीम्ड कर लिया कि आपको एक्चुअल सप्लायर माना जाएगा इन सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। आपको मीन्स कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को। हु इज ई कॉमर्स ऑपरेटर? हु इज द ओनर और मैनेजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, सम ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। तो ये समझ गए आप। सो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज टू डू कंप्लायंस अंडर जीएसटी लॉ। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कंप्लायंस करेंगे? अब इसमें ये भी हो सकता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, इतने सारे स्टेट्स हैं, आपने देखा है कि जीएसटी में डिफरेंट स्टेट्स में, जीएसटी में डिफरेंट स्टेट्स में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, चाहे आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो या सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, जहां से आप टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब इतने सारे स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ से लेना हो। लेकिन क्या होता है कि सिंस इट इज डिजिटली, द मार्केट प्लेस इज डिजिटल, ई कॉमर्स ऑपरेटर में एग्जिस्ट डिजिटली। जैसे फेसबुक है, इंडिया में डिजिटली एग्जिस्ट करता है, गूगल है, डिजिटली एग्जिस्ट करता है, कई कई रिसोर्सेज हैं, मैन पावर्स हैं, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस भी है हालांकि कंपनीज में, लेकिन कई मार्केट प्लेसेज ऐसे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जिनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं। मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे कई मार्केट प्लेसेज में तो सर उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इंडिया में, वो मैं डिस्कस करूंगा आगे वाले स्लाइड्स। उनका इंडिया में एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सप्लाइंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया। सो वो जो सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, जो ई मार्केट प्लेस है, जो ई मार्केट प्लेटफॉर्म है, वहां पे कस्टमर इंडिया के जो हैं, इंडिया के आईएसपी एड्रेस पे जाते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं। सो क्या इन केसेस में कैसे उनको टैक्स किया जाए? तो आप देखेंगे कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 जो है बहुत ही ब्यूटीफुली इन लोगों को कैप्चर करता है। वो सिंपली कहता है कि यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं और ये सर्विसेज आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड हो रही हैं, वो सर्विसेज क्या है मैं एक एक आपसे आगे डिस्कस करूंगा। वो सर्विसेज जिसको हम इसके नाम देते हैं क्या? स्पेसिफाइड सर्विसेज। सो वो जो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, यदि वो आप प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं, डिफरेंट सप्लायर्स हैं, डिफरेंट कस्टमर्स उसको सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो उसमें माना जाएगा कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड यू हैव टू डू कंप्लायंस। अब जो कंप्लायंस है, सपोज अब वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहेगा, ऑपरेटर कहेगा कि सर मेरा तो यहाँ कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मेरा कोई स्टाफ ही नहीं है, मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है यहाँ पे,
तो उस केस में सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 सेज कि यदि वहां पे आपका रिप्रेजेंटेटिव है तो रिप्रेजेंटेटिव को टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा एंड ही हैज टू डू कंप्लायंस, ही हैज टू पे टैक्स अंडर जीएसटी लॉ। ही विल मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर बच नहीं सकता, उसका इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव है तो वो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आगे सुनिएगा, यदि इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इन दैट केस he has to, in that case he has to appoint somebody as a representative to do compliances, to pay taxes। देखिए कितना खतरनाक प्रोविजन है, OIDR के जैसा ही समथिंग सिमिलर है। सो इवन ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की जो स्पेसिफाइड सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहा है और उसका एग्जिस्टेंस इंडिया में नहीं है, तो भी उनको यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा and he has to pay taxes on behalf of suppliers of those specified services। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहती है, जैसे लास्ट टाइम भी अभी दिसंबर में जो काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कस हुआ था और वहां पे प्रोवाइड किया था। आगे चलते हैं। अब ये जो सर्विसेज जो हैं, जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में जो नोटिफाइड है यानी स्पेसिफाइड सर्विसेज है, वो क्या है वो आगे देखते हैं। वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स सर्विस। इस केस में जैसे रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, आजकल तो रैपिडो भी बहुत हिट हो रहा है जहां पे मोटरसाइकिल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स हो रहा है, रैपिडो ऐप के थ्रू। बेस्ट एग्जांपल है मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स सर्विस का। यहाँ पे रैपिडो बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो एक बेस्ट एग्जांपल है, इस केस में हम ले सकते हैं। तो जहां भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ऑफ सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस है, उस केस में जो ऐप है यानी जो ऐप ऑनर है या मार्केट प्लेस ऑनर है, ही विल बी डीम्ड एज ए सप्लायर ऑफ दोज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस। उसको डीम किया जाएगा एंड ही हैज टू इशू टैक्स इनवॉइस, उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना है एंड ही हैज टू लेवी एप्लीकेबल टैक्सेस, उसको एप्लीकेबल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ये नहीं कहेगा कि जैसे मोटरसाइकिल वाला है, मोटरसाइकिल का एग्जांपल लें, या कैब वाला है, रेडियो टैक्सी या कैब, या ये ओला उबर का जो ड्राइवर है, ड्राइवर ऑनर उसके कार के ऑनर को पकड़ो कि भाई वो पे करेगा, वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, ऐसा नहीं है। Here government has made it very simple by exempting those suppliers and putting liability on the owner of e-marketplace like Ola, Uber, Rapido and other various other platforms। तो उसमें उनको ही पे करना है। आई थिंक होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ये मोटरसाइकिल वाला केस आया है 1 जनवरी 2022 से, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके पहले मोटरसाइकिल वाला देयर वाज नो क्लैरिटी, तो वो बचे हुए थे, बट अब क्लियर कट काउंसिल ने डिसाइड किया और इनको भी दायरे में लेके आ गए। अब नेक्स्ट जो स्पेसिफाइड सर्विस है वो है प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स या गेस्ट हाउसेस, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो या लॉजिंग पर्पस हो, कोई भी पर्पस हो, यदि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अकोमोडेशन इन होटल सर्विसेज, यानी आप कह सकते हैं कि क्या कहें इसको, रेसिडेंशियल सर्विसेज कहें बेहतर है, या लॉजिंग पर्पस के लिए कहें वो भी बेहतर है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अभी ये हमें चेक करना पड़ेगा क्या एग्जेम्प्टेड है, क्या टैक्सेबल है। बट इन केसेस में भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को लायबल किया गया है एंड ही हैज टू इशू टैक्स इनवॉइस एंड डिपॉजिट टैक्सेस। अब वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा तो क्या वो खुद बियर करेगा? नहीं जी, वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा तो कंज्यूमर से लेगा, यानी हमसे, आपसे, हमने होटल बुक कराया तो हम पे करेंगे जीएसटी। यानी यहाँ पे जो सप्लायर, जो एक्चुअल सप्लायर कौन है, होटल वाला है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन करेगा? मेक माई ट्रिप करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेक माई ट्रिप हैज टू इशू टैक्स इनवॉइस एंड पे टैक्सेस एंड ऑल्सो डू अदर कंप्लायंसेस। सिमिलरली, अब जैसे IRCTC भी कई जगह प्रोवाइड करती है सर्विसेज, तो वहां भी दे आर ट्रीटेड एज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एंड दे हैव टू डू कंप्लायंसेस। ये जो कंप्लायंसेस हैं, दे हैव टू इशू टैक्स इनवॉइस एंड डिपॉजिट टैक्स विद द गवर्नमेंट। सिमिलरली अब आते हैं
हाउसकीपिंग सर्विसेज, जैसे मैंने प्लम्बर का एग्जांपल दिया था, तो ये हाउसकीपिंग सर्विसेज में भी ये नोटिफाइड सर्विसेज जैसे प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एक्सेट्रा, इन केसेस में भी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल इज अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप क्या ये सारे ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है, वो प्लम्बर, कारपेंटर, सारी सर्विसेज सब के टेक्नीशियंस को प्रोवाइड करते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अर्बन क्लैप है, यहाँ पे अर्बन क्लैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स देना। सिमिलरली रेस्टोरेंट के केस में, अब जोमेटो है, स्विगी है, यहाँ पे भी उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि दीज आर स्पेसिफाइड सर्विसेज एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शंस। उन केसेस में भी टैक्सेस कौन देगा? जोमेटो और स्विगी को पे करना। होप इट इज क्लियर, दीज आर नोटिफाइड सर्विसेज। ये कितने हैं जी? ये 4 सर्विसेज हैं फिलहाल, आप याद रख लें, कोई बड़ा चीज नहीं है। केवल 4 सर्विसेज को छोड़ करके ई कॉमर्स ऑपरेटर पे यदि समझना है आपको, तो इन 4 को छोड़ करके बाकी सारे पे टीसीएस प्रोविजन अप्लाई होता है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन जो हमने देखा। इन चारों के सर्विस के केस में कौन कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस, प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, इन गेस्ट हाउसेस सर्विस, या रेसिडेंशियल और लॉजिंग सर्विसेज कह लें, हाउसकीपिंग सर्विस एंड रेस्टोरेंट सर्विस। These are those services where e-commerce operator will be deemed as a supplier, although actual supplier is somebody else. Hope it is clear to you. तो इन केसेस में e-commerce operator को टैक्स देना पड़ेगा, and these are notified specified services under section 9 subsection 5 of CGST Act 2017. Hope it is clear to everybody. अब स्पेसिफाइड प्रेमिसेज, जैसे आप रेस्टोरेंट सर्विसेज में आएंगे तो यहाँ कहा गया स्पेसिफाइड प्रेमिसेज को ध्यान में रखते हुए, यानी उनको एग्जेम्प्ट करके। तो स्पेसिफाइड सर्विसेज का मतलब होता है, जैसे आप किसी होटल में गए, होटल में आप गए, वहां पे रुक भी रहे हैं और वहां उनका अपना रेस्टोरेंट भी है, तो रुक रहे हैं, उनका किराया जो पर नाइट का है वो कितना है? टैरिफ 7,500 से ऊपर है। तो उन केसेस में आपको जो रेस्टोरेंट सर्विस पे जो सपोज ऑल्दो आपने मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक किया, लेकिन सिंस दे आर टैक्सेबल पर्सन, उनका 7,500 से ऊपर उनका किराया है, उस केसेस में यदि वो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, खाना पीना आप वहां पे खाते हैं, तो उन केस में टैक्स कौन देगा? वो पर्टिकुलर होटल ही देगा। उस केस में जोमेटो या सॉरी मेक माई ट्रिप नहीं देगा टैक्स। ये आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। ये अमेंडमेंट इस बार आया है, दिस इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2022। आपने सुना हो गया कि जो जोमेटो से ऑर्डर करना महंगा हो गया, स्विगी से ऑर्डर करना महंगा हो गया। उसका रीजन यही था, क्योंकि 7,000 वो होटल्स को छोड़ दें, स्पेसिफाइड होटल्स को, प्रेमिसेस को, तो उनको छोड़ के बाकी जहां भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट सप्लाई करते हैं जोमेटो स्विगी के थ्रू, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं, और कवर हो जाते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के दायरे में आ जाते हैं। तो उन केसेस में ऑब्वियसली जीएसटी जब जोमेटो हमसे चार्ज करेगा, वो सब जोड़ के चार्ज करेगा और उस पर हमें टैक्स देना है। चलिए अब थोड़ा सा ब्रीफली हम एक दो FAQs ले लेते हैं जो आपके फायदे के लिए। सबसे पहले, व्हाट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर? जैसा मैंने बताया कि इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ CGST एक्ट, एंड अकॉर्डिंगली if a person owns, operates or manage digital or electronic platform facility और या क्या कहें e-marketplace, he is known as e-commerce operator. जैसे Amazon, Flipkart, Urban Clap, Goigo, Make My Trip, Zomato, Swiggy, everybody is e-commerce operator. Even IRCTC is e-commerce operator. Even GEM is e-commerce operator. ये सारे e-commerce operators। जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम, रजिस्ट्रेशन वाली स्लाइड्स पे हमने डिस्कस किया था कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है कि नहीं, हमने डिस्कस किया था। तो उनके लिए मैंडेटरी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर, ध्यान रखिएगा, एज ए रेगुलर नहीं, एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसके लिए देयर आर सेपरेट प्रोसीजर्स दैट हैज टू बी फॉलोड एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर। वहाँ ऑप्शंस आते हैं जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे कि एज ए रजिस्ट्रेशन एज ए व्हाट, तो एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर वो करेंगे, तो उसके सेपरेट प्रोसीजर्स हैं, वो आपको फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट इज कि क्या टीसीएस एग्जाम सप्लाईज पे कलेक्ट होगा?
आई थिंक आप बेहतर आंसर दे सकते हैं। ई कॉमर्स सप्लाई पे टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सिमिलरली जो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो will those e-commerce operators are liable to pay GST on goods or services supplied through those platforms, their e-marketplaces, instead of actual supplier? Yes, under section subsection 9 subsection 5 of section 9 sorry subsection 5 of section 9 of CGST Act, उनको उन 4 सर्विसेज जो हमने डिस्कस किया था अभी कौन कौन से, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, होटल अकोमोडेशन सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस एंड फोर्थ इज हाउसकीपिंग सर्विस। ये 4 सर्विसेज पे उनको टैक्स देना पड़ेगा एज ए एक्चुअल सप्लायर। उनको डिम्ड किया गया है, लॉ ने ही डिम्ड कर दिया सर, तो वो करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक जीएसटी में आपने समझा, काफी चीज समझा। अब मैं इसके पहले एक और बात बता दूं, एक ब्रीफ करता हूं सर मैं। आपने यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन देखा, आपने यहाँ पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का प्रोविजन देखा, एक्सेप्शंस देखा। अब बेसिकली यहाँ पे 2-3 चीजें आती है। आप यदि जीएसटी लॉ में, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट बताना आपको बड़ा जरूरी है। जीएसटी लॉ में बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेबिलिटी। फर्स्ट इज अंडर फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज उसको बोलते हैं। सेकेंड इज अंडर रिवर्स चार्ज, क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब कि यू हैव टू पे टैक्स एज ए सप्लायर ऑफ सर्विस, यानी आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। जो मतलब बेस्ट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ टैक्स इनवॉइस, ताकि इससे आपको समझ आएगी कॉमन लैंग्वेज में कि आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना। तो इसको हम बोलते, जब आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, आप सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबिलिटी है। लेकिन ये किसके लिए होता है, सेल साइड के लिए, आउटवर्ड सप्लाई के लिए। ध्यान रखिएगा, दिस इज ओनली फॉर आउटवर्ड सप्लाई। यदि आपको इनवर्ड सप्लाई के लिए यानी परचेज साइड के लिए जब टैक्स देना होता है अंडर जीएसटी लॉ, तो उसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, आरसीएम बोलते हैं। सो आप समझ गए, फॉरवर्ड चार्ज, आरसीएम। और तीसरा है डिमिंग प्रोविजन, जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 है। अब बताता हूं मैं, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो है वो चार्जिंग सेक्शन है जीएसटी का। सेक्शन 9 जो है जीएसटी का क्या है, चार्जिंग सेक्शन है। ध्यान से सुनिएगा, ये आप कुछ ना कुछ आज लेके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जो इजिली अवेलेबल है। आप लेके जाइएगा प्लीज। ये अंडर जीएसटी लॉ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्जेबिलिटी। फर्स्ट अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, फर्स्ट फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज किसमें है, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, यानी सबसेक्शन 1 में क्या है, फॉरवर्ड चार्ज है। सबसेक्शन 2 में अलग बातें कही गई है एग्जाम्पशन वगैरह की। सबसेक्शन 3 जो है वो रिवर्स चार्ज के लिए, और सबसेक्शन 4 भी जो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 एंड 4 है वो रिवर्स चार्ज को डील करता है, यानी रिवर्स चार्ज में चार्जेबिलिटी के बारे में बात करता है वो। लेकिन सबसेक्शन 1 जो है फॉरवर्ड चार्ज के बारे में बात करता है। सो यहाँ पे समझने वाली बात है, सबसेक्शन 3 एंड 4 वो रिवर्स चार्ज के लिए डील करता है। लेकिन सबसेक्शन 5 यानी सेक्शन 9 में 5 सबसेक्शंस हैं। नंबर 1 जो है, सबसेक्शन 1 जो है वो डील करता है क्या, फॉरवर्ड चार्ज के बारे में। सबसेक्शन 2 एग्जम्पशंस के बारे में, पेट्रोल डीजल डीजल। सबसेक्शन 3 जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करता है, और सबसेक्शन 4 जो है वो भी रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड सप्लायर, उसके बारे में बात करता है। और सबसेक्शन 5 जो है वो डीम्ड सप्लायर के बारे में बात करता है। यानी डीम्ड सप्लायर मींस यहाँ पे एक अलग चार्जेबिलिटी है, आपको माना जाता है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को उन्होंने नोटिफाई किया। होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो यहाँ पे 3 टाइप के टैक्सेबिलिटी है अंडर जीएसटी लॉ, और तीनों के बारे में हम तो डिटेल में कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। बट ये टैक्सेबल जो चार्जिंग सेक्शन है, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये आपके पूरे फंडे को क्लियर कर देता है, एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट पूरे फंडे को क्लियर कर देगा। सिमिलरली जैसे सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 के बारे में बताया,
ये डीम्ड सप्लाई है, तो ये केवल ई कॉमर्स ऑपरेटर में फिलहाल एप्लीकेबल है, नोटिफाइड है। इन सर्विसेज में भी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए, हमने जीएसटी के बारे में चर्चा कर लिया, तीनों टैक्सेबिलिटी के बारे में समझ लिया। अब एक और बात मैं बता दूं इनकम टैक्स के प्रोविजंस के समझने से पहले, अंडर जीएसटी लॉ जो है सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जैसे मैंने बताया, एक कंपनी जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर भी हो सकती है और रेगुलर सप्लायर भी हो सकती है, तो दोनों में उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की जो कंप्लायंसेस हैं वो तो करने ही पड़ेंगे और रेगुलर वाले भी काम करने पड़ेंगे। सो एक कंपनी हो सकता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, फॉरवर्ड चार्ज गुड्स सप्लाई कर रही हो, तो वो कंपनी कहाँ फॉल करेगी? अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 में वो फॉल करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर सप्लाईज। लेकिन वो यदि ये रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इस केस में भी उनको इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे उनको टैक्स देना है एज अ डीम्ड सप्लायर ऑफ दो सर्विसेज। नेक्स्ट, अब वो सिंस वो ई कॉमर्स ऑपरेटर भी हैं, उनका अपना वेब ई कॉमर्स ई मार्केट प्लेस है, वहां पे डिफरेंट सेलर्स भी रजिस्टर्ड हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में उनको सेक्शन 52 का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, चलिए समझते हैं इसको फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। एक कंपनी सपोज 2-3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अंडर द सेम जीएसटी नंबर, अंडर द सेम पैन, बेसिकली सेम पैन एंड सेम जीएसटी नंबर, तो उस केसेस में उनको तीनों चार्जिंग सेक्शन अप्लाई, सब सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3-4 एंड सबसेक्शन 5। ये तीनों प्रोविजन यानी फॉरवर्ड चार्ज, डीम्ड सप्लायर और आरसीएम तीनों एप्लीकेबल हो सकते हैं, और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का जो कंप्लायंस है वो भी एप्लीकेबल होगा, वो भी उन पे अप्लाई होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अपने क्लाइंट्स को एडवाइज करने के टाइम या खुद यदि कंप्लायंस करते हैं उस टाइम ध्यान दीजिएगा ये ट्रांजेक्शन अलग अलग होने चाहिए ऑन एंड सबकी एप्लीकेबिलिटी अलग होनी चाहिए इफ दे आर वर्किंग है अंडर अ सिंगल जीएसटी। सो यहाँ पे टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व है, आपको सेपरेट टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए यहाँ। चलिए, अब जीएसटी डिस्कस कर लिया, अब हम इनकम टैक्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर जीएसटी बिल्कुल अलग है और उसकी चार्जेबिलिटी बिल्कुल अलग है और इनकम टैक्स की चार्जेबिलिटी बिल्कुल अलग है। अब यही जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं या ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है, इस पे इनकम टैक्स भी अप्लाई होता है, ऑब्वियसली अप्लाई होगा ही। कैसे अप्लाई होता है? सो बाकी सेक्शंस इनकम टैक्स के तो अप्लाई होते ही हैं, लेकिन कुछ स्पेशल सेक्शन है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए अप्लाई होता है, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी में था वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग भी है और एक जगह सिमिलर भी है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जो एप्लीकेबल होता है सर, वो होता है टीडीएस का प्रोविजन। किसका? टीडीएस का प्रोविजन। हमने जीएसटी में पढ़ा टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई होता है, यहाँ पे इनकम टैक्स में टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई होता है। ठीक है, सो यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई होता है, वो अंडर सेक्शन 194 वो होता है, उसका मैं एक समरी ब्रीफ आपको बताऊं। बट बिफोर दैट हमें ये समझना है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उस पर और क्या प्रोविजंस अंडर इनकम टैक्स लॉ कह लें या समझ लें कि इनकम टैक्स लॉ के दायरे में क्या क्या अप्लाई होता है। तो यहाँ पे एक सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवी है, चार्जेबिलिटी है, वो है इक्वलाइजेशन लेवी की। किसकी? इक्वलाइजेशन लेवी। ये इक्वलाइजेशन लेवी आप अब आप कहेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, नहीं सर। इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया अंडर फाइनेंस एक्ट 2016 ऑन व्हाट? ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, लेकिन सारे नहीं, कुछ देयर आर एक्सेप्शंस टू इट, और एक्सेप्शंस हम अलग से देखेंगे। बट उन डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया और उस पे वो टैक्स देना होता है।
अब ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है, ये कहते तो हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, बट एक्चुअली ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लेवी नहीं हो रहा है। ये जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हैं, इस पे इक्वलाइजेशन लेवी लगता है, और वो कैसे लगता है वो हम देखेंगे एक चार्जिंग सेक्शन में। लेकिन वो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे इक्वलाइजेशन लेवी लगता है, और वो एज अ जीएसटी की तरह ही आप कह लें कि वो डायरेक्टली उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होता है। ये टीडीएस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इक्वलाइजेशन लेवी इज नॉट अ काइंड ऑफ टीसीएस और टीडीएस, इट्स अ काइंड ऑफ लेवी, इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स चार्ज्ड on what? On consideration received, on consideration received, यानी जो आप कमा रहे हैं, जो आप कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं, उस पे इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज होगा, और उस इक्वलाइजेशन लेवी को चार्ज करके आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। अब किस पे ही चार्ज होगा? तो ई कॉमर्स सप्लाई पे चार्ज होगा। लेकिन हमें वो प्रोविजंस देखना होगा, वो फाइनेंस एक्ट 2016 एंड फाइनेंस एक्ट 2020 के जो प्रोविजंस हैं, वो हमें देखने होंगे कि वो कौन से प्रोविजंस हैं जिसपे इक्वलाइजेशन, जो इक्वलाइजेशन लेवी के में डील करता है, और इक्वलाइजेशन लेवी उसके अंडर लेवी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये समझ गए कि इक्वलाइजेशन लेवी इज अ काइंड ऑफ टैक्स leviable on what? On consideration received by e-commerce operators on supply of service or goods. अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहाँ पे जो जीएसटी में हमने पढ़ा वही इक्वलाइजेशन लेवी में भी है? नहीं, इक्वलाइजेशन लेवी में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स वो है, मतलब है वही, लेकिन बेसिकली इक्वलाइजेशन लेवी में नॉन रेसिडेंट को कैप्चर किया गया है, यानी फॉरेन सप्लायर्स को कैप्चर किया गया है। सो यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को ही पे करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वलाइजेशन लेवी जो है नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे ही लागू होता है अंडर फाइनेंस एक्ट 2016, अंडर चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 एंड 2020। आइए चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन। जैसे मैंने बताया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो डिफाइन किया गया है, वो किया गया है कि मींस अ नॉन रेसिडेंट हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और ऑनलाइन प्रोविजन सर्विसेज। और ये सेम है जो हमने जीएसटी में भी पढ़ा, एक्सेप्ट द वर्ड नॉन रेसिडेंट। सो इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर, इक्वलाइजेशन लेवी लागू होता है, और उन पे ट्रांजेक्शन्स पे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे ई कॉमर्स नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को इक्वलाइजेशन लेवी पे करना होता है। अब वो रेट्स एंड जो सर्विसेज हैं वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ लेवी, टैक्स, इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स। अब जो इक्वलाइजेशन लेवी है, ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2016 में, वाइट फाइनेंस एक्ट 2016, चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 में लेवी किया गया था। उसमें जो इनिशियली जो सर्विसेज कवर थी, वो कवर थी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। ऑनलाइन जो सेल ऑफ स्पेस एडवर्टीजमेंट सर्विसेज होती है डिफरेंट वेबसाइट से, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पे देखा होगा आपने एडवर्टीजमेंट आती है। तो उन एडवर्टीजमेंट को कैप्चर करने के लिए 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी को इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उस पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज करना था, और उस पे जीएसटी, सॉरी, इक्वलाइजेशन लेवी पे करना था उन नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी वो रेवेन्यू, यानी ये तो कंसिडरेशन में चार्ज होता है। कंसिडरेशन किससे गया होगा? ऑब्वियसली अंडर, जैसे इनकम टैक्स लॉ कहता है कि रेसिडेंट पर्पज से, जो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, या नॉन रेसिडेंट पर्सन जिसका पीई है इंडिया में, वो यदि उनसे वो कंसिडरेशन कलेक्ट हुआ है तो उस पर उनको पे करना है। नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स को, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को 6% इक्वलाइजेशन लेवी पे करना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। अब ये जो इक्वलाइजेशन लेवी आया, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स हैं, उस पे कब से आया? 1 अप्रैल 2020 से आया, वाइट फाइनेंस एक्ट 2020। 2060 से किस पे आया? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे आया। लेकिन अदर ट्रांजेक्शन्स पे कब से आया?
1 अप्रैल 2020 से, और ये लेवी किया गया बाई चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020। यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर जब भी मैं बोलूँ तो आप समझ जाएं कि यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब है नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब जो रेट्स हैं, रेट्स आप देखेंगे तो जो रेट्स जो इक्वलाइजेशन लेवी के हैं, जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के केस में जो 2016 से लेवी हुआ था, उसका रेट है 6%। एंड अदर ई कॉमर्स बिजनेसेस पे कितना रेट है? 2%, जो 1 अप्रैल 2020 से लेवी हुआ था। चलिए ये आप समझ गए, मुझे लगता है यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब टीडीएस का भी प्रोविजन समझाता हूँ, तब उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, एक चीज बताऊंगा कि ये इक्वलाइजेशन लेवी आया क्यों इंडिया में। समझ रहे हैं? इंडिया में ये इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेवी क्यों किया, वो उसका कारण भी मैं बताऊंगा अभी। बट इसके पहले मैं सब डिस्कस करता हूँ टीडीएस का प्रोविजन जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टीडीएस का प्रोविजन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जब भी पेमेंट करेगा पार्टिसिपेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स हियर मींस सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन ई मार्केट प्लेस। जो डिफरेंट सेलर्स हैं, वो जो ई मार्केट प्लेस पे जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सेलर्स को जब भी, जैसे जीएसटी के केस में क्या था, वो टीसीएस कलेक्ट करते थे। टीडीएस क्या करते थे? टीसीएस कलेक्ट करते थे अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। यहाँ के केस में, यहाँ के केस में जब भी वो पार्टिसिपेंट्स सेलर्स को सेल पेमेंट करेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे करेंगे, यहाँ पे वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब जैसे मैंने बताया, इक्वलाइजेशन लेवी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं है, बट उनका फुल कंट्रोल, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इज अंडर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन ये टीडीएस का जो प्रोविजन है अंडर सेक्शन 194 ओ, ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही आया है। सो ये टीडीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194 ओ में डिडक्ट होता है, और होल रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू इट। तो ये बेसिक डिफरेंस है इक्वलाइजेशन लेवी और ये टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ओ। अब जो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ओ है, इसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। इसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या है? वही जो जीएसटी एक्ट में था। कौन सा है? जो जीएसटी एक्ट में ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन था, वही डेफिनेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर का फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194 ओ है। लगभग थोड़े से वर्ड्स इधर उधर हैं, बट मीनिंग लगभग वही है। यहाँ पे नॉन रेसिडेंट पे खाली अप्लाई नहीं होता, नॉन रेसिडेंट पे इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स आप देख सकते हैं, जो सेल करते हैं, उसका डेफिनेशन भी मैंने दिया है अंडर सेक्शन 194, जो मीनिंग दिया गया है वो भी मैंने बताया। अब जो टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194 ओ, कितना परसेंट करना है? 1% करना है ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स और सर्विसेज। इसके डिफरेंट जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो एक्सेप्शंस हैं, वो आप देख लीजिएगा, बाद में डिटेल में पढ़िएगा, उतना अभी टाइम की स्कार्सिटी रहती है, इसलिए मैंने वो कवर नहीं किया। बट ये होल कंसेप्ट यही है कि अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, यदि हम ले नॉर्मल इंडियन या फॉरेनर या जो भी है, उनके केसेस में जीएसटी में टीसीएस का प्रोविजन है, बट इनकम टैक्स एक्ट में 194 ओ के अंडर टीडीएस का प्रोविजन है। अब इक्वलाइजेशन लेवी किसी केस में एप्लीकेबल है? जो नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। और जो इक्वलाइजेशन लेवी का रेट क्या है? 6% इन केस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और सर्विस, और 2% इन केस ऑफ, मैंने यहाँ पे स्लाइड्स पे मेंशन किया है, एंड 2% इन केस ऑफ अदर ई कॉमर्स बिजनेसेस। ये बेसिकली है। अब जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊंगा कि 1 मिनट, जैसा मैंने कहा था कि मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट 2016 में क्यों लेके आई। जैसा आपको पता है कि अब जो पूरी दुनिया है ना, वो एक है एक तरह से बिजनेस पर्पज से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को देखें, हर चीज पूरा कंट्रोल मॉनिटरिंग करती है बिजनेसेस। सिमिलरली क्या होता था पहले, कुछ दिन पहले तक टैक्स अवॉइडेंस बहुत ज्यादा हो रहा था। कंपनी जो है वो डिजिटली एग्जिस्ट करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन टैक्स वहां पे नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल गूगल को लें, फेसबुक को लें, ये सारी कंपनी जो है, लिंक्डइन को लें,
यूट्यूब को लें, ये पहले क्या करती थी, रेवेन्यू अर्न करती थी इंडिया से या बाकी अदर कंट्रीज से, लेकिन टैक्सेस कम देती थी या नहीं देती थी। तो उस केस में होता ये था कि रेवेन्यू तो इंडिया से आ रहा है लेकिन टैक्स इंडिया में दे नहीं रही है। वो टैक्स कहाँ दे रही थी, लो जुरिस्डिक्शन में जाके, जहाँ पे टैक्स रेट बहुत ही कम है, वहां पे कोई ना कोई बात या एग्जाम्पशन है, वहां पे रजिस्ट्रेशन लेकर के वहां की कंपनी बताती थी, और इनकम अर्न कहाँ से हो रहा था, इंडिया से, कमा इंडिया से रही थी। तो ऐसे केसेस में सारी कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और उनको फील हुआ कि नहीं ये सही नहीं है, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो जहां से कमाता है वहां पे कुछ ना कुछ टैक्स दें, मिनिमम टैक्स दें। तो इसको लेके जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेसेस को मॉनिटर करता है, पॉलिसीज बनाता है। सो इन यहाँ पे ये फील किया गया कि यहाँ पे कुछ हमें करना चाहिए। सो अब तक 141 कंट्रीज ने यहाँ पे मेंबर बने हैं OECD के, इस मैटर पे डील करने के लिए और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। इसमें आपने सुना होगा पिलर 1, पिलर 2। अब इसके अंदर जो बेप्स है, इसको हम बेसिकली जो अवॉइडेंस करते हैं, जो टैक्स नहीं देती हैं कंपनीज, जी जहाँ से कमाती हैं और या कम देती हैं, उसको हम बेप्स, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं। कि मतलब यहाँ बेप्स के अंदर नुकसान होता है जहाँ पे जिस उस कंट्री को जहाँ पे वो ऑपरेट करती है, इनकम अर्न करती है, तो उसको बेप्स, अंडर बेप्स बोलते हैं इसको। सो इस बेप्स को काउंटर करने के लिए एंटी बेप्स पॉलिसीज बनाना बहुत आवश्यक था, जो प्रॉफिट शिफ्ट ना करे, रॉयल्टी के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में प्रॉफिट शिफ्ट कर लेती थी दूसरी कंट्रीज में और वहां पे टैक्स नहीं देती थी या बहुत कम देती थी। आप आज भी देखते होंगे कि जो फॉरेन कंपनीज है इंडिया में सब्सिडरी के थ्रू काम करती हैं और इंडिया से रॉयल्टी लेती हैं बहुत सारी, वो कुछ नहीं, वो बस वही है, पेप्सी है। सो एंटी पेप्स पॉलिसीज रूल्स बनाना जरूरी था, लेकिन ये पॉलिसीज रूल्स बनाने में काफी टाइम लगता है, वक्त लगता है। सो इतना टाइम एंड वक्त लगता है, इसको देखते हुए सभी देशों ने ये सोचा कि क्यों ना हम अभी कुछ ऐसा करें, डिसाइड करें कि हर कंट्री को इस जिसको लॉस हो रहा है, ज्यादातर जो लॉस मेकिंग कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो वहां पे जिनको लॉस हो रहा है वो कंट्रीज यहाँ पे अपना, वो कंट्रीज यहाँ पे एक स्पेशल डिजिटल टैक्स लेवी कर सकती हैं। कौन सा टैक्स, डिजिटल टैक्स। डिजिटल टैक्स लेवी कर सकती हैं जो डिजिटल कंपनीज हैं, इनके मिसमैनेजमेंट को, टैक्स अवॉइडेंस को काउंटर करने के लिए। सो उस OECD के बेप्स का जो प्रोजेक्ट है, उसको बेप्स प्रोजेक्ट बोलते हैं हम, OECD, हाँ बेप्स प्रोजेक्ट बोलते हैं। उस बेप्स प्रोजेक्ट के अंदर ये सभी स्टेट को, मेंबर कंट्रीज को कहा गया कि आप अपने यहाँ पे यदि लॉस हो रहा है तो एक मिनिमम डिजिटल टैक्स लेवी करें। सो वो मिनिमम डिजिटल टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां से परमिशन मिलने के बाद इक्वलाइजेशन लेवी के फॉर्म में लेवी किया। सो ये इक्वलाइजेशन लेवी, ये वही टैक्स है और इसलिए ये लेवी किया गया। धीरे धीरे लगा कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से शुरू में पता चला, फिर बाद में पता चला कि तो प्लेटफॉर्म ड्रिवन इकोनॉमी बन रही है इंडिया, सो इनको भी कैप्चर करना जरूरी है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी कैप्चर करना जरूरी है। जो इंडिया में है वो तो ऑलरेडी कैप्चर हो रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज में है बट यहाँ से कमा रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। तो उनको पकड़ने के लिए वो जो कंपनीज थी जो इंडिया से तो अर्न करती थी प्रॉफिट्स, बट यहाँ टैक्स पे नहीं करती थी, उनको पकड़ने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया और धीरे धीरे उसका स्कोप वाइड किया गया, वाइड फाइनेंस एक्ट 2020, और वो 1 अप्रैल 2020 से ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे, सारे ट्रांजेक्शन पे उसको लेवी कर दिया। तो ये है इक्वलाइजेशन लेवी क्यों आया, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लेवी किया। अब समझने वाली बात है सर कि जब बेप्स प्रोजेक्ट के अंदर OECD का जो बेप्स प्रोजेक्ट है, OECD का मेंबर कंट्री होने के नाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया, तो जब वो बेप्स, एंटी बेप्स रूल्स एंड रेगुलेशंस इश्यू हो जाएंगे, उसके अंदर क्या है कि ये प्लानिंग चल रही है कि रूल्स तो इश्यू भी हो गए हैं, पब्लिक कंसल्टेशन भी इनवाइट हो गया है, उस पर ये प्लानिंग चल रही है कि हर कंपनीज को, डिजिटल जो कंपनीज हैं, फेसबुक, अमेजन या आप लेना गूगल, यूट्यूब, ये सारी कंपनी जो है, इन सबको मिनिमम 50% टैक्स उस जुरिस्डिक्शन में देना है जहां से ये प्रॉफिट अर्न कर रही है। समझ रहे होंगे, जैसे
अब गूगल है, वो यूएस की कंपनी है, लेकिन यहाँ पे वो कमा रही है, यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इंडिया में ही हैज टू पे इक्वलाइजेशन लेवी। लेकिन जब ओईसीडी डिसाइड कर लेगी कि कितना मिनिमम 50% पे करना है यहाँ पे, लेकिन गूगल ने सपोज 12% पे किया, तो 3% और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी मिनिमम 50% पे करना पड़ेगा हर जुरिस्डिक्शन में जहाँ से वो प्रॉफिट अर्न करती है, जहाँ वो बिजनेस करती है। सो ये बेप्स ओईसीडी डिसाइड करेंगे अंडर बेप्स प्रोजेक्ट, और वेरी सुन मुझे लगता है ये प्लानिंग है कि 1 अप्रैल 2024 से नया डिजिटल टैक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आ जाएगा, और ये सारी कंपनीज जो टैक्स अब नहीं दे रही है, ऑल्दो जिस किसी कंट्री से कमा रही है प्रॉफिट्स और टैक्स नहीं दे रहे, उन सब कंपनीज को वहां भी टैक्स देना पड़ेगा, यानी ग्लोबल मिनिमम टैक्स आपने सुना होगा, वो यही है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स एट द रेट ऑफ 50% फिलहाल डिस्कशन चल रहा है, वो यही है। वो आते ही इक्वलाइजेशन लेवी डिलीट हो जाएगा इंडियन लॉ से। फिर गवर्नमेंट को ये चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 एंड 2020 अमेंड करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा। फिर वो टैक्स अप्लाई होगा जो ओईसीडी मेंबर कंट्री डिसाइड करेंगे, फाइनल कर। तो इस तरह से ये इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट है आया, और ऐसे ये खत्म भी हो। सो ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक इनकम टैक्स और हमेशा परमानेंटली इक्वलाइजेशन लेवी चलेगा, ऐसा नहीं है। इक्वलाइजेशन लेवी मैक्सिमम जो उम्मीद है कि टिल 31st March 2024 तक चलेगा। फ्रॉम 1st April 2024 there will be a new global minimum tax at the rate of 50% or some other rates that we have to see। तो ये चीज है इक्वलाइजेशन लेवी का। लेकिन ये जो 194 का टीडीएस है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, मुझे लगता है इट विल रिमेन, ये कंटिन्यू रहेगा, वो टीडीएस कटेगा, जमा होगा। तो ये भी आप समझ गए, और ये सारे न्यूज पेपर्स की कटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज आ रही है यहाँ डिस्कस करने की, वो ये आ रही है कि कस्टम्स। बेसिकली मैं इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक्सपर्ट हूँ, तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में ही बात करूंगा। तो मैंने जीएसटी के बारे में बात कर ली, थोड़ी बहुत इनकम टैक्स बताना जरूरी था बिकॉज वो मेजर कंसेप्ट है, और उसमें भी जो टैक्स लॉ है तो वो जानना जरूरी है आपके लिए, इसलिए हमने वो कवर किया। और कस्टम ड्यूटी ये भी एक बार समझ लेते हैं। अब जो कस्टम ड्यूटी है, आपको पता है कस्टम लॉ आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कस्टम ड्यूटी इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गुड्स, वो भी कब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में। इफ इट इज मूव फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, इफ इट इज ब्रॉट इन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, सो इन केसेस में कस्टम ड्यूटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, और इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी तो हालांकि अभी वहाँ पे कंसेशन है, तो देना नहीं होता अपफ्रंट, बट बहुत कम गुड्स पे ही लगता है एक्सपोर्ट ड्यूटी, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी लगभग हर गुड्स पे लगता है। अब क्वेश्चन आता है कि गुड्स के केस में इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, लेकिन क्या सर्विस के केस में इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी लगता है क्या? सर्विस जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आंसर इज नो, स्ट्रेट वे नो। कस्टम ड्यूटी इज लेविएबल ओनली ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये WTO के समझौते के तहत भी है। अब चैलेंज इज ई कॉमर्स इतना डेवलप हो रहा है कि यहाँ बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि सर्विसेज हम बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, तो उन सर्विसेज पे कस्टम ड्यूटी कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमारे इंडिया को लॉस हो रहा है। लेकिन सिंस अंडर कस्टम एक्ट, कस्टम लॉ, सर्विसेज पे कस्टम ड्यूटी नहीं लग सकता तो नहीं लग सकता, मैटर इज ओवर। यहाँ पे WTO भी बहुत ही क्लियर है कि मैटर इज ओवर, यहाँ पे नहीं फेंका। लेकिन कुछ जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मैंने क्या बोला, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मैंने डिजिटल सर्विस नहीं कहा, डिजिटल प्रोडक्ट्स, वो तो गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स है एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, वो गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं। वो जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बुक्स हैं, बुक्स तो फिजिकली हम पढ़ते हैं, खरीदते हैं, बट अब ई बुक्स भी आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आ गई हैं। पहले जो मूवी, पहले जो सॉफ्टवेयर आपके CD में आता था, पेन ड्राइव में आता था, वो अब इलेक्ट्रॉनिकली आप डाउनलोड कर सकते हैं सर्वर से।
सप्लायर बैठा है आउटसाइड इंडिया, आप वहाँ उसके सर्वर से यहाँ पे इजिली इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट ई कॉमर्स। अब वो जो डिजिटल प्रोडक्ट के डेफिनेशन में यदि वो फॉल करता है, वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो देखना पड़ेगा। तो क्या उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा? डेफिनेटली लगेगा, उन पे कस्टम ड्यूटी लगेगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि उस पर कस्टम ड्यूटी लगता क्यों नहीं है? इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो तो प्रोडक्ट है, गुड्स है, तो उन गुड्स के केस में कस्टम ड्यूटी तो लगना चाहिए, उसका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं लगता? तो कस्टम ड्यूटी सर उस पर इसलिए नहीं लगता कि WTO के तहत मोराटोरियम है ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स। कहने को तो डिजिटल गुड्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली यदि आ जा रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? डिजिटल गुड्स ही कहेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ अल्टीमेटली गुड्स ही कहेंगे ये। So although it is covered under definition of goods and custom duty should have been levied, but due to moratorium imposed by WTO, उस पे कस्टम ड्यूटी उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं लगता है। सो इन केस ऑफ ई कॉमर्स इतना डेवलप हो रहा है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। इंडिया बहुत ही ज्यादा लूज कर रहा है कस्टम ड्यूटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवर्ट सप्लाई ऑफ डिजिटल गुड्स। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, मूवी, नेटफ्लिक्स, देखिए नेटफ्लिक्स पूरा का पूरा हम डिजिटल गुड्स है, वो पूरा का पूरा हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, इंडिया में मूवी देख रहे हैं, ई बुक्स देख रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स देख रहे हैं आप। ऑनलाइन गेमिंग जो है वो भी क्या है? ई बुक्स है। ई बुक्स नहीं कह सकते हैं उसको, ऑनलाइन गेम जो है डिजिटल प्रोडक्ट है। ऑनलाइन गेम तो इतना ज्यादा हिट हो रहा है, काउंसिल की मीटिंग चली है, स्पेशल कमेटी इस पे सेटअप हुई है कि जीएसटी का क्या इम्पैक्ट रहेगा, जीएसटी पे कितना % लेवी करना चाहिए ऑनलाइन गेमिंग के केस में। बट हम सारी चीजें यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फ्री इंपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो लूज कर रहा है, crores of rupees गवर्नमेंट इज लूजिंग इन केस ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट ऑफ या एक्सपोर्ट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। सो लेट अस सी क्या होता है, WTO क्या डिसीजन लेता है, बट राइट टाइम हैज कम टू टेक अ फर्म डिसीजन by the government of India on this to levy custom duty on these digital products. तो ये है सर्विसेज के केस में कस्टम ड्यूटी नहीं लगता तो नहीं लगता, दैट इज क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है कस्टम ड्यूटी ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स, या इंटेंजिबल गुड्स भी हम उसको बोल सकते हैं। इंटेंजिबल गुड्स आप देखें तो इंटेंजिबल गुड्स भी वही है, डिजिटल प्रोडक्ट्स ही। तो ब्रीफली हमने यहाँ पे यदि हम सम अप करें तो हमने ये समझा जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे कैसे एप्लीकेबल होता है, सम पार्ट्स ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, सम पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एंड टैक्सेस ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमने डिस्कस किया, समझा। मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे। यदि फिर भी कुछ नहीं समझे, फिर भी यदि कुछ आप नहीं समझे, कुछ चीजें ऐसी है तो डेफिनेटली हम अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में। बट इन ब्रीफ यही है, the way digital e-commerce transactions are increasing, it is developing. The time has come to frame a policy on these e-commerce transactions to, collect taxes, to collect revenue by the government. Government has to frame a proper taxing policy on these e-commerce transactions. GST में तो कवर कर ही लिया, बट आई थिंक इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस में वो भी देखना है। जो कस्टम ड्यूटी के फ्रंट पे जो लॉस है उसको टैकल करना बहुत जरूरी है। एवरी कंट्री शुड लुक एट इट एंड दे शुड हैव अ ग्लोबल रिकमेंडेशन या ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑन लेविंग कस्टम ड्यूटी ऑन दिस इंटेंजिबल गुड्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स। आई थिंक थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी जो इस टाइम में बताना था वो मैंने बता दिया, एंड मुझे कहा गया था कि 15 मिनट पहले फिनिश करने का, तो मुझे लगता है मैंने 15 मिनट पहले इसको कंक्लूड किया आपके समक्ष, और आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप चाहें तो हम इसे कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम ले सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको किसी को भी कुछ डिस्कस करना है पर्सनली भी, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9650482999। मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि हमेशा अवेलेबल रहे, जब भी आप देखें
or any time you can call me up and you can get clarification. यदि कुछ रह गया हो, बच गया हो, तो आप मुझे ईमेल करें, फोन करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे. यदि मैं इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर पाता तो नो प्रॉब्लम, मैं उसको देखूंगा और जब भी देखूंगा मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा. बट किसी कॉल का रिप्लाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. प्लीज मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, आई विल रिमेन अवेलेबल एंड आई विल रिप्लाई दैट क्वेरी. I think it is time has come to wind up now. So thank you very much, Sumit ji. Over to you, and thanks for listening patiently. Thank you, Akshay ji. But sir, हमारी कुछ queries हैं chat box में. If you would like to answer, can we? बेहतर है क्या आप रीड कर पाएंगे चैट बॉक्स खुद ही? Yeah, sure sir, I can For the sake of everybody, मैं yes sir, no, not an issue. But I can read only those queries if it is posted for everyone, and if it is posted directly to you, then only you can read that query. 1 minute. So first query was, what are the factors to be considered for registration state? Is it where server located or place of effective management or something else? How to determine state in which registration should be taken for that e-commerce? I have already answered during my presentation. This is a very subjective query. Here you have to look at each and every aspect to identify from where you are making supply. Okay. It may be location of server. It may be fixed place of business. It may be even some temporary office, if that is available. But ultimately we have to consider what are the, major or major factor to decide, location of that particular service. तो I think server तो एक criteria है, major criteria, because server जहाँ पे होता है वहीं सारे manpower, सारे technical resources वगैरह वहाँ होते हैं. So I think server and manpower location वगैरह consider किया जा सकता है. Okay. Then another question from Umesh Jethani ji is, what will be the status when sales in 1 month and sales return in next month? How the same will be adjusted? So इस केस में ये नहीं कहा गया है कि जिस मंथ में सेल हुआ हो उसी मंथ में सेल रिटर्न होगा तो ही आपको कंसीडर करना है, ऐसा नहीं कहा गया है अंडर जीएसटी लॉ. बस ये कहा गया कि पूरे महीने में आपने सपोज 1 लाख का सेल किया लेकिन 10,000 का सेल रिटर्न आया, लेकिन उसमें 10,000 में 2,000 रुपया उसके पहले महीने का है. तो ऐसा नहीं है कि आपको 8,000 ही इसमें सेल रिटर्न दिखाना है और आपको टीसीएस पर्पस से 92 लेना है. मेरे हिसाब से यहाँ पे आप पूरा 10,000 ही लेंगे तभी इफेक्टिव यहाँ पे जस्टिफिकेशन आप दे पाएंगे और टैक्स मंथ ऑन मंथ वी नीड टू चेक. yes. या तो या सेटलमेंट पीरियड अगर ठीक है मंथ, आई थिंक मंथ ऑन मंथ लेना बेहतर है. ओके. Next question is from Sumit Nandari. For TCS deduction, supplier should be registered under GST or he is required to register with e-commerce operator? Or TDS? For TCS deduction, TCS, a supplier correct. Should be registered under GST or he is required to register under e-commerce operator only? TCS जो है, for TCS provision, he has to get registration under ई-कॉमर्स ऑपरेटर. जैसा मैंने कहा कि टीसीएस केवल ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पे ही अप्लाई होता है. सो ही हैज टू बी मैंडेटरीली ई-कॉमर्स ऑपरेटर. तो इसमें लेकिन सप्लायर होगा, दैट सप्लायर आल्सो नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. उसका क्लेम तो तभी मिल पाएगा उसे, मतलब फ्रॉम माय डेफिनेटली ई-कॉमर्स ऑपरेटर यानी ई-कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एवरी सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ. वो यही रीजन है. ओके. तो सुमित जी, आई थिंक योर क्वेरी इज आंसर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अतिका अरोरा. इनका है, इज टीसीएस आल्सो एप्लीकेबल ऑन दीज स्पेसिफाइड सर्विसेज एट 95 स्पेसिफाइड सर्विसेज? मैंने पहले ही कहा, कई बार रिपीट किया था, ये जो स्पेसिफाइड सर्विस है अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 9,
ये 4 केसेस में ये सेक्शन इनका सेक्शन भी अलग है और इन केसेस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। वो मैंने एक्सेप्शन वो स्लाइड पे भी मेंशन किया है। Another query is कि for notified services under 9.5, if Sorry, supply come again, please. For notified services under 9.5, section 9.5, Yes. if supplier say X is required to be registered under GST under section 22(1), तो in that case जो TCS करना है वहाँ पे, जैसे मेक माई ट्रिप का एक एग्जांपल दिया था, तो मेक माई ट्रिप won't be charging GST बिकॉज जो सप्लायर है वो 22(1) में उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो सप्लायर विल चार्ज GST फ्रॉम हिज कस्टमर एंड डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट, और व्हाट विल बी द सिनेरियो इन दैट केस? मेरे हिसाब से सप्लायर यदि रेगुलर सप्लाई करता है, यदि वो ऑफलाइन में जाके या अपने वेबसाइट से बुकिंग करा है, तो उस केस में वो डायरेक्टली चार्ज करेगा। लेकिन यदि उसने ई कॉमर्स मेक माई ट्रिप के थ्रू रूट होके आ रहा है, तो मेक माई ट्रिप हैज टू इशू टैक्स इनवॉइस। ओके, मतलब जैसे मेरा जैसे कोई क्लाइंट है, टूर ऑपरेटर है वो, एंड वो खुद भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में एज ए नॉर्मल अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, उसकी जो बुकिंग चलती है वो अपना ओन वेबसाइट है, वो तो ठीक है, डिफरेंट हो गया, उसमें कोई इशू नहीं है। और कुछ बुकिंग्स उसकी मेक माई ट्रिप या डिफरेंट ऐसे पोर्टल्स के थ्रू आती हैं, तो उन दैट केसेस तो कस्टमर को जो बिलिंग होगी वो क्लाइंट करेगा या मेक माई ट्रिप करेगा? मेक माई ट्रिप करेगा। ओके, एंड जो टूर ऑपरेटर है, टूर ऑपरेटर विल उसको बिल करने की जरूरत नहीं है, उसको टैक्स इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है टू द एंड कस्टमर। ओके, वो मेक माई ट्रिप को, चलो नेक्स्ट दूसरा सिनेरियो। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन दिस केस। फर्स्ट इज बिटवीन मेक माई ट्रिप एंड द एंड कस्टमर कंज्यूमर, and second leg of transaction is between make my trip and the hotelier. तो ये कैसे सेटल करते हैं? वो ई कॉमर्स पे जो भी खरीद बिक्री टीसीएस दिस दैट वो है अप्लाई होगा और उसके थ्रू सेटलमेंट होगा। देन अमर ए मार्क जी का क्वेश्चन है, इन दिस केस होटल नीड टू फाइल रिटर्न और नॉट? आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट दैट 9.5 सर्विसेज जहाँ पे होटलियर्स में 9.5 में नोटिफाई किए हैं। इस केस में 9.5 के केस में जो ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वही रिटर्न फाइल करेगा, वही कंप्लायंसेस करेगा अंडर जीएसटी लॉ। जो भी एक्चुअल सप्लायर जो है कुछ करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज अभय ठक्कर जी का क्वेश्चन है, डज बायजूस एन अकेडमी क्वालिफाइड एज ई कॉम ऑपरेटर? डेफिनेटली, बायजूस तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही है सर्विस सेक्टर में। ठीक है, देन सारे ई कॉमर्स हैं। Another query is कि where e-commerce operator is non-resident and e-commerce participant is resident, then whether equalization levy on participant and TDS under 194(o) by e-com operator will be applicable? वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए एक बार फिर क्लैरिफाई। देखिए, जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो डायरेक्ट लेवी है, जैसे इनकम टैक्स हम पे करते हैं वैसे ही इक्वलाइजेशन लेवी है। Yes. और वो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो जो कंसिडरेशन कलेक्ट करता है वो किससे कलेक्ट करेगा? जैसे इंडियन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या जो कंपनीज है जिनका पीई है, नॉन रेसिडेंट कंपनी जिनका पीई है इंडिया, इट मींस उनसे वो कंसिडरेशन ले रहे हैं। Yes. तो इस केसेस में वो कंसिडरेशन जितना कलेक्ट कर रहा है उस पे उसको 2% ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे खुद कैलकुलेट करना है और डिपॉजिट कराना है। वो कलेक्ट नहीं कर सकता, ध्यान रहे यहाँ पे। राइट, कैनॉट कलेक्ट इट फ्रॉम दोज कस्टमर्स। यस। तो यदि कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉन रेसिडेंट इनवॉइस इशू करता है आपको इंडियन रेसिडेंट को, तो वो नॉन कंप्लायंस कर रहा है, वो कलेक्ट नहीं कर सकता। इट इज अ डायरेक्ट अंडर फाइनेंस एक्ट एंड ही हैज टू पे इट। अब टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये टीडीएस का प्रोविजन है। इट इज वेरी सिंपल। जैसे इंडियन ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो सेलर्स जो है, जो भी प्लेटफॉर्म पे सेल परचेज कर रहे हैं, तो जैसे जीएसटी के केस में हमने पढ़ा था ना, टीसीएस अंडर सेक्शन 52, सिमिलरली 194 में ये टीडीएस है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो उसमें उन पार्टिसिपेंट्स को जब वो पे करेगा सेम ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे, उनको पेमेंट जब करेगा तो उस पेमेंट से टीडीएस भी कटेगा, किस रेट से? 1% से। सो मेरा जो मानना है इस केस में, माफ करिएगा थोड़ा मैं ज्यादा क्लैरिफाई करता हूँ,
नहीं सर, ये तो अच्छा यदि है। ई कॉमर्स ऑपरेटर है मैम, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेलर्स हैं, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं या ई मार्केट प्लेस के थ्रू जो सप्लाई कर रहे हैं, उनसे 2% डिडक्शन तो मैंडेटरी करेगा। 1% एज टीसीएस अंडर जीएसटी लॉ एंड 1% एज टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ओ ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हम्म, शायद यही रीजन है कि जो सेलर्स होते हैं ये फ्लैट अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या कहीं, वो परेशान रहते हैं कि हमारा इतना टैक्स कट गया, कैसे कट गया, यही रीजन है। और इससे पहले उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो कभी कहते हैं इनकम टैक्स में कटा और कभी जीएसटी में, वो इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। सीएज आर कंफ्यूज बॉस, इसीलिए मैं ये दोनों को इकट्ठे करके सेमिनार करता हूँ। सीएज आर कंफ्यूज, वो ये रीजन है। एक तो टीडीएस होगा, उसका रेट भी 1%, हाँ, अनफॉर्चुनेटली देखें रेट भी वही है, रेट भी वही है। 1%। जीएसटी का जो टीसीएस है उसका भी रेट 1%। और दोनों का कंप्लायंस किसको करना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही करना है। तो यदि आपके पास जोमेटो का आपका क्लाइंट है, आप परेशान हो जाएंगे। तो ये हाँ। मतलब ध्यान तो रखना पड़ेगा मैम। ये बिल्कुल सर, कंप्लायंस इज नॉट इजी नाउ। बिल्कुल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, चीजों के अंदर जाना पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाएंगे इजीली। विपुल जी, सर की कांटेक्ट डिटेल्स आपको इनकी प्रेजेंटेशन में मिल जाएंगे एंड प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड विद ऑल द मैं पार्टिसिपेंट्स फिर से लिख चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ, चैट बॉक्स में भी लिख दिया मैंने। हाँ, सर ने अपना नंबर भी दे दिया। एंड कासा का जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं सारे मिल जाएंगी वहां पर, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे शेयर कर देते हैं जो भी हमारी वेबिनार्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेरी सर, एक दो क्वेरीज और ले सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम है, सारी क्वेरीज क्लियर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मनोज जी। Then such service treated as exempt supply for regular supply, equalization levy to be deposited by non-resident, और ये अभी क्लियर कर दिया है। आई होप मनोज जी आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस नहीं हुआ है देन प्लीज आप एक बार दोबारा से क्वेरी रेज कर ले अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अतिका अरोरा। Sir, it has written in this slide that if person doing supply of services is already registered, then e-commerce operator does not have to charge GST. Please clarify. It's ये for तो नहीं है। specified. ये अभी शायद मेक माई ट्रिप वाला जो एक लिया था एग्जांपल, दैट सेम थिंग ही है ये। इट इज क्लियर। तो अतिका जी, आई होप कि आपका भी क्लियर हो गया होगा। इन केस एक- नहीं है देन आप रेज कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, सेक्शन 9(5) थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे एक समझने वाली चीज है कि अंडर फॉर सर्विसेज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, इस केस में ऑल्दो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को एज ए सप्लायर माना गया है। ये ध्यान रखिए आप, तो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो इफ एनीवन एल्स हैज एनी क्वेरी, अमर जी आप शायद रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहे हैं, तो दैट सुमित जी कैन इन्फॉर्म की अप टू व्हाट टाइम ही कैन शेयर रिकॉर्डिंग और नॉट। दैट सॉरी टू से बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी या नहीं। नेक्स्ट इज फ्रॉम विवेक भट्ट। What would be the status of a person who wishes to start to do sell through website and mobile app that is used only for his product? What would be the status of a person? Okay, इस केस में इट्स वेरी सिंपल, ही विल बी ट्रीटेड एज ए रेगुलर सप्लायर। यानी टीडीएस प्रोविजन जो है अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दैट वोंट अप्लाई। I think we are done with all the queries today. सुमित जी का जस्ट अभी मैसेज आया है कि आई थिंक वो कहीं फंस गए हैं, ही इज ऑन द वे। आज वेदर भी काफी चेंज हो गया तो इसलिए वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं अभी। ये हम सबके लिए खुशखबरी है कि वेदर चेंज हुआ है, वेदर चेंज हुआ है, काफी रिलीफ है, हीट काफी वेव रिलीफ होने वाली है, तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी और की कोई क्वेरी है जो पूछना चाहते हैं और टाइप करना नहीं चाहते? राम जी, it's running outside. Uh, Asa ji, if you any query you can take up, otherwise we will सुमित close जी, the session. Okay, we have Sanji, discussed okay. all the queries. We have done that, तो I think we can close. अगर आपका सुमित जी कुछ अलग और नहीं है तो
Okay. Ramji. Yes, sir. बताइए. Hello. सुमित जी आप कुछ कह रहे थे? Yes, yes. आशा जी मैं कह रहा था कि अगर कोई query नहीं है तो we can close the session as हाँ, already ठीक है. Okay. I got stuck somewhere. That we will do. That we will do. Okay, Yeah. thank you. Okay. Thank you so very much. sir, Thank you. Thank you for inviting me. Sir, on behalf of Team CASA, we would like to thank you so much for Thank you very giving your much, Ashish. precious time to us. And thank you all the participants for joining us today. Next session पे मिलते हैं and I hope कि next session में भी आप लोग सब attend करेंगे. हाँ. Day after Thank you. tomorrow next Day after tomorrow will be the next session. And thank you so much. Thank you so very much, much. Akshay sir. Thank you. Once again. Thank you so much.